ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Thank you very much. On behalf of the three families, please express our heartfelt gratitude for coming tonight, and we'll try to serve you in our medium capacity. Is anyone actually who's coming for the first time today? You're coming for the first time? So what's your name? My name is Sag. Say it again. Sag, S-A-I, Sag. Sag. Sahil. Sahil. Sahil Chaitanya. Oh, Sahil Chaitanya. Okay. How did you come to know about this program? My father came last week. Okay. Last week. Okay. Thank you very much for coming. Anybody else? Oh, so you've come for the first time as well? Yes. So what's your name? Rajiv. Rajiv. And your and is she your wife? Right. Okay. What's your name? Vishesta. Vishesya. Vishesta. Vishesya. All right. Thank you very much for coming in. And how did you two come to know about this program? To Nadi Prabhu. Oh, Nadishan Prabhu. Nadi Prabhu. Nadia. All right. Thank you very much for. Thank you very much for coming in. So basically, just for those who have come for the first time. So what we are doing is, a few weeks back we started, not even a few weeks actually, I think it's almost a month. But then again, we started a program called Journey of Self-Discovery. The course is actually based on the Bhagavad Gita. Although there are 700 verses in the Bhagavad Gita, Sanskrit verses, and then we have a purports for all of them. But we're not gonna discuss all those verses because otherwise Bhagavad Gita itself will take at least an year, at least 1 year, because there are 700 verses. So you go verse by verse. So what we are doing here is we have not I actually, but then the committee who has been doing this course all over the world. It started in the US, Canada, Europe, all over the world. It's been going on for the last 30-35 years. So they designed this course, which is a thematic course. So what basically we do is we pick certain themes of the Bhagavad Gita, like 10 or 15 verses, and we compile into a theme, and then we collect those themes into a chapter. So basically, this course is an overall high-level view. So by the end of this course, at least you will have a very, very high-level view of what's happening in the Bhagavad Gita. We're not here to teach you Sanskrit, just the basic stuff, basic high-level things. Thanks again also. Is anyone actually who don't understand English? And is there anyone who don't understand Hindi? Yes, right. God, you're gonna have some challenge, mate, today. Last time I started a class in Hindi, and what I'm finishing is actually finishing the second chapter of the same thing from Srimad Bhagavatam. But you listen, because I said a very beautiful verse. Lord said, in fact, Yudhishthira Maharaj, he's Dharmaraj. He's actually son of Yamaraj, so he basically is invoking the same thing. And Vidura, before the war started of Kurukshetra, Duryodhan threw Vidura out of the palace. He said, "You're not required here. Just go away." Anyways, right. So once the war is finished, and then Vidura comes back. So Yudhishthir, he welcomes Vidura. Vidura is none other than Yamaraj himself. He's Yamaraj. He's one of the 12 Mahajans. He knows dharmas in and out. And he incarnated in the form of a Duryodhana for some reason. And when he comes, he says this verse, and that's for you because you missed out on that. Yasyam Vaishruyamanayam Krishne Param Purushe Bhaktir Utpadyate Pumsam Shokamo Bhaya Upaha. Simple language, what he says is Yasyam, to this here, basically, Shruya, the word Shramana is come from the word. Just mere by hearing what is being talked about, basically the scriptures, even if you don't understand a single word, even if the
the mode of a communication, the language of a communication is different from the language you understand. Even if I speak French and nobody understands this thing, still you will get benefited. That's the potency of the scriptures. And I gave an example. For God forbid, if you and I actually get sick, I'm actually sick today. I mean, it's not like that bad, just a normal cough cold. And we both take paracetamol, Panadol. You understand how does the Panadol works, and I don't understand. So medicine will not discriminate because I don't understand how the medicine works. So I will not work on you, and I will work on you because you understand the thing. Does that make sense? Yeah. It'll still work. It still will work. Even if you don't understand. So welcome to the journey. I'm gonna speak in Hindi. जो लोग यहाँ पे आए थे लास्ट टाइम, आप लोग कुछ है, क्योंकि आई नो हमने 2 चैप्टर फिनिश कर दिए थे और हमें तीसरा चैप्टर शुरू करना था, हु एम आई, मैं हूँ कौन एक्चुअली। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिटूर लिया था हमने, कोई कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे पास क्लियर नहीं थे। डज एनीबडी रिमेंबर हमने क्या कवर किया था, क्यों कवर किया था? बिकॉज क्योंकि हम काफ़ी टाइम से भगवान को दिखाओगे तो मान लूँगा, नहीं मानूंगा, और पीपल हैड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कि भगवान है क्या चीज़, रोशनी है, फॉर्म है, क्या है। तो बेसिकली इन शास्त्र इसको परम सत्य को हम एब्सोल्यूट ट्रुथ बोलते हैं। और इंस्टेड हम अपना कुछ कॉन्कॉक्शन करें तो शास्त्र खुद ही बोल रहे हैं एक्चुअली कि तो वदंती तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो वदंती कहते हैं, क्यों, कौन कहता है? जो इस तत्व को जानते हैं और जिन्होंने इस तत्व को देखा हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं? परम सत्य की बात कर रहे हैं। और वो ये कहते हैं, एक चीज़ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आई अपोलोजाइज, मैंने एक वर्ड गलत यूज़ किया था जब मैंने आपको ये वर्ड समझाया था। मैंने यहाँ पे एक वर्ड आया था अद्वयम पे मैंने एक वर्ड यूज़ कर लिया था यहाँ पे अद्वैत। आई एम सॉरी, अद्वयम का मतलब यहाँ पे द्वैत नहीं है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे जब बात हुई थी अद्वयम, ये जो ये वर्ड संस्कृत से बना है, प्रथमा द्वितीय। प्रथमा मतलब एक, संस्कृत में बोलते हैं, द्वितीय मतलब 2। तो द्वितीय, द्वय मीन्स द्वितीय, 2। अद्वय मतलब ये 2 नहीं है। अद्वयम का मतलब ये 2 नहीं है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेकंड टू नन। You're second to none, right? Means there is no other person qualified in terms of the skills other than you. You are the only one. तो अद्वय means ये परम सत्य को जिन्होंने वो कहते हैं जिन्होंने इस तत्व को देखा हुआ है और इस तत्व को जानते हैं। क्या कहते हैं कि ये तत्व अद्वय, ये अद्वयम है, ये 2 नहीं है, ये एक ही है। और जबकि इसको 3 रास्तों से समझा जाता है, जो कि है ब्रह्मन, ब्रह्मेति। ब्रह्म ये 2 वर्ड से बना है, ब्रह्मन इति, ब्रह्मेति मीन्स इसको हम ब्रह्मन भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको परमात्मा बोलते हैं, परमात्मेति, और तीसरे इसको बोलते हैं भगवान, भगवान इति। तो इसको हमने कैसे समझा था इसको? आई थिंक हमने एक स्टोरी दी थी कि हमने एक 3 विलेजर्स एक स्टेशन के ऊपर गए, उनको ये नहीं पता था कि वो ट्रेन है या क्या है। I'll fast forward because we have to cover like so many things. So Brahman is basically the light, जिसको हम निराकार निर्गुण रूप बोलते हैं एक्चुअली। और जो परमात्मा है बेसिकली वो फॉर्म भी है, वो लाइट भी है। और जो भगवान है वो बेसिकली नाम रूप गुण, वहाँ पे लाइट भी है, फॉर्म भी है, और कुछ लीलाएं भी हो रही हैं, इंट्रैक्शन भी हो रही हैं इसमें। शास्त्रों में एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूर्य की किरण सूर्य के ग्लोब से डिफरेंट नहीं है, और सूर्य का ग्लोब सूर्य के ग्रहण से डिफरेंट नहीं है। बस कॉन्सेप्ट समझने की बात है। सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग एक्चुअली। सो वोंट गो इन डिटेल एक्चुअली बिकॉज वी कवर्ड so many things here. So that was one of the thing we covered, and we went into the detail. Lot of things we discussed. Ultimately we came to the point. So Brahman is basically we can call a Brahm Jyoti, निर्गुण निराकार। बट अगेन जब हम बोलते हैं निर्गुण निराकार, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के अपने कोई गुण नहीं है या भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। बेसिकली उनके कोई भौतिक गुण नहीं है, उनके भौतिक आकार नहीं है उनके, उसका मतलब ये है। और ये ब्राह्मण जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये होते कौन है? इनको ज्ञानी बोला जाता है। आज हम इसके बारे में और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। परमात्मा जो है ये योगी और ध्यानी होते हैं।
जो परमात्मा की को प्राप्त करना चाहते हैं और जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वो भक्त होते हैं। क्योंकि जो भक्त बेसिकली जैसे पिता और पुत्र दो एंटिटी हैं और उनके बीच में एक रिश्ता है पिता का, तो मीन्स दो व्यक्ति और उनके बीच में रिश्ता। तो सिमिलरली भक्ति एक रिश्ता है और ये रिश्ता सिर्फ भक्त और भगवान के बीच में ही हो सकता है और किसी के साथ नहीं हो सकता। तो भगवान को भक्ति से जो उसका रिश्ता, भक्ति से जो भक्त होते हैं उसी से प्राप्त कर सकते हैं इसको। डिवोटीज, योगी, ध्यानीज, ज्ञानीज, we covered so many things actually, so we'll not go in a detail. So one correction में जैसे मैंने बताया अद्वैम इसका मतलब है दो important point actually मैं कवर नहीं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था। तो आज बेसिकली इसी का कंटिन्यूशन पार्ट 2 है, आज की इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लास से होपफुली वी आर बैक ऑन द ट्रैक। हम बेसिकली 4 फिलॉसफीज की बात करेंगे यहाँ पे। फिलॉसफीज देखिए, स्पेशली हम लोग इंडिया से आए हुए हैं। इंडिया तो लैंड ही एक धर्म क्षेत्र बोलते हैं, भगवद गीता में पहला वर्ष ही धर्म क्षेत्र है। क्योंकि जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं एक्चुअली, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट धर्म्स हैं, अगर हम देखें तो उसकी उत्पत्ति ही भारत जैसे देश से हुई है। बल्कि शास्त्रों में ये भी बोला गया है कि भारत देश में जन्म लेना ही अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है और हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हमारी। वो विल डिस्कस अबाउट दैट, व्हाट आर दोज थिंग्स। तो क्योंकि भारत देश में अलग अलग, जैसे हम इनफैक्ट जब भी मैं इंडिया में था, जब छोटे भी थे, तो टीवी ऑन कर लिया, केबल टीवी लगा हुआ है, उसमें एक अलग अलग चैनल्स होते हैं, सोनी टीवी, मूवी टीवी, जी टीवी, ऐसी एक साधना, आस्था, रिलीजियस चैनल्स भी आते थे। हर एक घंटे में कोई ना कोई किसी की कथा चल रही है, कोई बाबा जी, कोई इधर कुछ ना कुछ चलता रहता, अच्छा लगता था सुनने में। कम से कम भक्ति के बारे में या कुछ, बल्कि देयर इज समथिंग एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी इन देयर ओन वे। So the point I'm trying to make is there are different sects, there are different organizations actually who are practicing the spirituality on their own way. There are hundreds and thousands of these things. However, ये सब के सब 4 कैटेगरीज के अंदर फॉल होते हैं। 4 कैटेगरीज के अंदर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप कोई भी पकड़ लेंगे, इनफैक्ट कोई फेथ भी अगर आप पकड़ लेंगे, वो भी उन कैटेगरीज के अंदर फॉल होते हैं। इम्पर्सनलिज्म, योगा, पर्सनलिज्म, वॉइडिज्म। सिंपल बेसिकली क्या चीज़ है, शास्त्र में पहला वर्ड बोला जाता है शून्य। शून्य का मतलब होता है जीरो। तो वॉइडिज्म जो तत्व है, बेसिकली जो लोग शून्य को जो फॉलो करते हैं, अभी विल डिस्कस अबाउट दैट। इंग्लिश में उसको हम वॉइडिज्म भी बोलते हैं। बेसिकली उनका मतलब ये है कि एवरीथिंग जीरो, व्हाटएवर जो भी है, विल टॉक अबाउट दिस थिंग। द सेकंड वन इज बेसिकली, यहाँ पे जो मैं वर्ड बता रहा था, जो मैंने गलत यूज़ किया, अद्वैम। अद्वैत का मतलब है सेकंड टू नन। नाउ द सेकंड फिलॉसफी इज बेसिकली अद्वैत। तो द्वैत भी बेसिकली 2 है और अ मतलब एक। तो ये बेसिकली अद्वैत मीन्स एक ही है। वो जो शून्यवादी होते हैं वो कहते हैं कि भगवान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कौन है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। आत्मा भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। जब तक ये शरीर है तब तक ही है हमें, बाकी सब कुछ वॉइड है। खाली था, खाली से आए और खाली में चले जाएंगे। सेकेंड फिलॉसफी जो है वो अद्वैत बेसिकली होता है इम्पर्सनलिज्म। इम्पर्सनल मतलब भगवान निर्गुण है, निराकार है, फॉर्म तो कुछ है नहीं। बल्ब से लाइट आ रही है, लाइट का कोई आकार तो है नहीं है, वहाँ भी लाइट है, यहाँ भी लाइट है, ठीक है। तो मैं इस लाइट में अपने हिसाब से लाइट को देखता हूँ। आप कॉर्नर में, वहाँ भी लाइट जा रही है, आप उस लाइट को अपने हिसाब से देखते हो। तो सबने अपनी कॉन्कॉक्शन बना रखी है यहाँ पे, बोलते हैं कि वो एक ही है। तीसरा है द्वैत। अगेन वो अद्वैत का ही अपोजिट है एक्चुअली। तो द्वैत बेसिकली मीन्स पर्सनल। ये बोलते हैं कि भगवान का कुछ आकार, मीन्स भगवान किसी चीज़ से अलग है। ये दे बिलीव इन द थिंग्स, एटलीस्ट देयर इज आत्मा। इनफैक्ट जो अद्वैत है वो भी आत्मा में विश्वास करते हैं। वो ये विश्वास करते हैं कि एक आत्मा है और हम सब आत्मा है और हमें बेसिकली परमात्मा में जाकर के लीन हो जाना है। बल्कि अभी हम उनसे बिछड़े हुए हैं, एक छोटी स्पार्क है या एक पानी की बूंद है, ओशन में जाकर, समुद्र में जाकर के मिल जाएगी, जैसे आपने बताया। उसके बाद हमारा एग्जिस्टेंस खत्म है। ये हमारी जिंदगी का गोल है। द्वैत बोलते हैं ठीक है, हम आत्मा भी हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो हम उसमें मिल नहीं सकते। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि
आत्मा आत्मा रहेगी, परमात्मा परमात्मा रहेगा. विल टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स. एंड देन इज द लास्ट फिलॉसफी इज कॉल्ड अचिंत्य भेद भेद. अचिंत्य, अचिंत्य का मतलब होता है समझना, आप कंसीव करना, समझना पर्सपेक्टिव से, अचिंत्य. ना भेद का मतलब होता है डिफरेंस, और अभेद मतलब अपोजिट ऑफ दिस, मीन्स कॉमन, कॉमनैलिटीज एंड डिफरेंसेस. तो बेसिकली अचिंत्य भेद भेद का मतलब है इनकंसीवेबली एंड साइमल्टेनियसली वन और डिफरेंट. वो एक भी है और डिफरेंट भी है. ये उनकी फिलॉसफी होती है. आज मैं क्लास नहीं लूँगा, आज आप लोग बेशक क्लास लेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में आपको मैं बताना चाहता था वो ये था कि ये अगर भगवान एक है तो हम एक ही, जैसे हमने आज एक कॉन्सेप्ट भी उठाया था, जैसे सिखिज़म में है तो वो बेसिकली जो उनके जो 10 गुरु हैं उनके बाद एक्चुअली वो जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं वो ग्रंथ को ही भगवान या गुरु मानते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं. बट एवरीबडी इज वर्शिपिंग ओनली वन. ऐसे ही जो मुस्लिम धर्म है उसमें सबको सभी कुरान और अल्लाह को पूजा कर रहे हैं. या हम हिंदुओं धर्म के अंदर ही हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं और पता भी नहीं है कि हम हो क्या रहा है. कुछ खिचड़ी सी लग रही है कुछ हमें. हालांकि ये चैप्टर डिटेल में आएगा कि एक गॉड है या मैनी गॉड्स हैं, एक गॉड है या 33 करोड़ देवी देवता है, वो हम डिटेल में करेंगे डिस्कस. बट द पॉइंट इज ये इतनी सारी फिलॉसफियाँ आई क्यों? जब भगवान एक है तो वह एक ही फिलॉसफी रखते हैं ना. हिंदुओं में एक फिलॉसफी रखते हैं आप. तो ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब स्टोरी हुई कहाँ से स्टार्ट हुई. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो मैंने बताया था वॉइडिज्म. कोई आप पढ़ेंगे पहले उससे? कैन यू रीड? और कैन समबडी रीड? Lord Buddha, a powerful incarnation of the personality of Godhead, appeared in the province of Gaya, Bihar, as the son of Anjana, and he preached his own conception of non-violence and deprecated even the animal sacrifices sanctioned in the Vedas. Thank you. Would you like to read the second one? Can you The see that? time when Lord Buddha appeared, the people in general were Atheistic. atheistic and preferred animal flesh to anything else. On the plea of Vedic sacrifice, every place was practically turned into a slaughterhouse, and animal killing was indulged in unrestrictedly. Lord Buddha preached non-violence, taking pity on the poor animals. He preached to reject the tenets of the Vedas. ये जो हम आपने पढ़ा है ये श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण के फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर का 11th वर्स है ये उसमें. और हमने एक्चुअली पिछले हमने वर्सेस में भी पढ़ा हुआ था जो हमने ये देखा था कि भगवान क्या एग्जिस्ट करते हैं. और फिर उसी चैप्टर के अंदर का एक पार्ट ये था कि शास्त्र को हम कैसे समझ सकते हैं. उसमें शास्त्र को समझने के 3 तरीके में हमने किए थे. किसी को याद है? एक था मैनुअल, लाइफ एक मैनुअल है. दूसरा था एक्ज्यूमेटिक ट्रुथ, इसको हमें एज इट इज एक्ज्यूमेटिक ट्रुथ में हमने एक काउ डंग का एग्जाम्पल लिया था हमने ये. और तीसरा क्या था? मैप, MAP, M फॉर मैनुअल, A फॉर एक्ज्यूमेटिक ट्रुथ, और तीसरा था P फॉर प्रेडिक्शंस. जबकि ये शास्त्र 5,000 साल पहले वेद व्यास जी ने लिखे हैं, लेकिन प्रेडिक्शंस हुई थी. क्या प्रेडिक्शंस हुई थी? कि गौतम बुद्ध आएंगे, उनके फादर का जैसे वर्ड एग्जैक्टली आया हुआ है. और ये सब शास्त्रों में वेद व्यास जी ने क्यों लिखा है? क्योंकि उनको पता था कलयुग में ऐसा होगा. लोग अपने आप को बोलेंगे मैं ही भगवान हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण होंगे. तो उनको उनकी फिलॉसफी को रिफ्यूट करने के लिए उन्होंने ये क्लियरली लिख दिया था कि कब भगवान का कौन सा इनकारनेशन कब आएगा, कौन सी जगह पे होगा, उनके पिता और माता का नाम भी क्या होगा. इस वर्ष में क्लियर लिखा. मैं तो हालांकि मैंने उसमें सिर्फ थोड़ा सा सेक्शन निकाला हुआ है, बड़ा क्लियर लिखा हुआ इस वर्ष के अंदर. ये भागवत पुराण का वर्ष है ये एग्जैक्टली है. एनीवेज तो सबसे पहले हम समझते हैं वॉइड फिलॉसफी क्या होती है. देखिए ये जो वॉइड फिलॉसफी अभी हम आगे पढ़ेंगे ये गौतम बुद्ध ने इंट्रोड्यूस की थी. जो गौतम बुद्ध हैं वो खुद भगवान के अपने अवतार हैं. जैसे अभी बच्चे जो प्रीति वाइफ जो है वो बच्चों को 10 अवतार करवा रही हैं, 10 इनकारनेशंस ऑफ द लॉर्ड करवा रही हैं. आई थिंक लास्ट टाइम दे डिड नरसिम्हा अवतार. तो नाउ देयर इज अनदर अवतार एक्चुअली, उसमें आता है 10 अवतार में से एक बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा का अवतार भी आता है. तो लॉर्ड बुद्धा ने जब अवतार लिया था तो उन्होंने एक फिलॉसफी को प्रोपोगेट किया था और उसको बोलते हैं शून्यवाद.
इंग्लिश में जिसको बोलते हैं वॉइडिज्म। ये पहले ये समझ लेते हैं ये फिलॉसफी क्या होती है। शून्यवाद फिलॉसफी का मतलब ये होता है, इनकी फिलॉसफी ये होती है, जो बुद्ध और ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं ये इस फिलॉसफी को प्रैक्टिस करते हैं। वो ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो आत्मा में विश्वास नहीं करते और वो शास्त्रों में विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते अभी हम डिस्कस करेंगे। वो एक एग्जाम्पल देते हैं उनकी फिलॉसफी का कि एक पॉट है, एक मिट्टी का पॉट, गमला है या घड़ा है, खाली पॉट है और उस घड़े के पॉट के अंदर देयर इज एन एयर, खाली एयर है। पॉट के अंदर भी एयर है और आपने बेशक अपने लिड से उसको बंद भी कर दिया, और पॉट के बाहर भी एयर है, अंदर भी एयर है बाहर भी एयर है। तो वो कंपेयर करते हैं कि जो पॉट है वो हमारा शरीर है और कोई उसको बजा रहा है, कोई उसको धो रहा है, कभी कोई उसको लुढ़का रहा है, तो पॉट एक मिजरेबल कंडीशंस में है। तो बेसिकली वो पॉट को कंपेयर करते हैं बॉडी से। तो जो मिजरीज हैं ये बॉडी के ऊपर आ रही हैं और जब तक ये बॉडी रहेगी तब तक मिजरी रहेगी, इसलिए वो मेडिटेशन में चले जाते हैं। अपनी जो चीज़ें लाइफ में मिजरी कॉज करती हैं वो ध्यान से, जैसा आपने बताया, बेसिकली 99% जो एक्चुअली हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, जितने भी ये जो हम मेडिटेशन करते हैं, द वेरी फर्स्ट द गोल इज डिफरेंट। जैसे रघुनाथ विजय प्रभु बोल रहे थे, गोल इज डेफिनेटली हायर, बिकॉज ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि हम है क्या। हमारी एक बॉडी, हमारे अंदर 3 बॉडियाँ हैं, तो द गोल शुड बी समथिंग हायर। एक हमारी ग्रॉस बॉडी जिसको हम आप और मैं देख सकते हैं, एक इसके अंदर एक बॉडी है जिसको, जो ऊपर वाली बॉडी होती है उसको हम ग्रॉस बॉडी बोलते हैं, या उसको बोलते हैं फिजिकल प्लेटफॉर्म बोलते हैं। जो अंदर वाली बॉडी होती है उसको बोलते हैं सटल बॉडी। सटल बॉडी बनी होती है माइंड, फॉल्स ईगो और इंटेलिजेंस से, उसको हम बोलते हैं बेसिकली मेंटल प्लेटफॉर्म। तो जो ध्यान योगा या जितनी मेडिटेशन करते हैं उसका गोल ही यही होता है कि मन को शांत किया जाए, क्योंकि भगवान जो है भगवद गीता के 5वें श्लोक के 7वें वर्ष में खुद ही बोल रहे हैं, भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांतिम रिच्छति। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं जब तक मन में शांति भी नहीं आएगी ना तब तक काम तो दूर की बात है, युद्ध तो बहुत दूर की बात है, तो भक्ति भी नहीं कर सकता बैठ करके। तो लाइफ में शांति आना बहुत ज़रूरी है। तो शांति का क्या मतलब है, जो मन की, जैसा बताया, मन की जो एजिटेशंस हैं, मन इधर उधर भाग रहा है, जरूरी नहीं है भाग भी रहा है, दुख है और मेरी लाइफ में कुछ हो गया, या मेरे पिताजी चले गए, या मेरे बॉस ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया, बिजनेस में मेरा लॉस हो गया, मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग जो माइंड हमारा एजिटेट करता रहता है हमारा। तो बेसिकली मेडिटेशन का इसका स्टेपिंग स्टोन, पहला स्टेप ये है कि पहले आप एजिटेशन को, जैसे आपने ओशन का भी एग्जांपल दिया था, अगर आपको पानी में अगर आपकी अपनी रिफ्लेक्शन भी देखनी है तो पहले पानी को काम डाउन करना पड़ेगा। जब तक वो पानी के अंदर अगर वर्लपूल्स, अगर पानी के अंदर अपनी अगर वेव्स आ रही हैं, अगर एजिटेटेड वाटर है, तो आप अपनी शक्ल, तो आप रिफ्लेक्शन तो तब भी नहीं देख सकते। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज टू जस्ट काम डाउन द माइंड, एंड देन जब आपका मन पीस पे होता है, देन यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो एनीवेज, तो इनकी फिलॉसफी होती है कि जितने भी जो मिजरीज हैं वो बॉडी के साथ हैं, और जब ये स्पॉट को तोड़ दूंगा तो वो मेरी, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो जब बांस ही नहीं रहेगा जंगल में तो उसकी मैं बांसुरी कहाँ से बनाऊंगा। जब बांसुरी नहीं बनेगी तो मैं बजाऊंगा किसको और परेशान किसको करूंगा। तो वही कहते हैं कि शरीर खत्म होने के साथ सारी मिजरीज भी खत्म है और हमको मिल जाता है निर्वाण, हमको मिल जाता है और हम शून्य हो जाते हैं। उनकी वो आत्मा में के अंदर भी विश्वास नहीं करते, उनका सिर्फ गोल यही होता है कि पॉट को तोड़ा, अंदर की हवा पॉट की और बाहर की पॉट आपस में मिल गई, अब सब कुछ शून्य, अब सब कुछ शांत है। इसकी डेफिनेशन को बोलते हैं, इस डेफिनेशन को बोलते हैं वो निर्वाणा। अब देखिए, तो ये क्यों है, क्यों ऐसा क्यों आया। पहले इसमें पॉइंट के अंदर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे वेद व्यास जी, वो ये पहले तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, यस ये ऑथेंटिक फॉर्म है, ये भगवान का ही रूप है, गौतम बुद्ध खुद भगवान का रूप है। और पहले बताया कि वो बिहार, उस टाइम पे एक जगह का नाम था गया, एक्चुअली वो वहाँ पे हुए और वो एक्चुअली अंजना के पुत्र हुए, और उन्होंने बेसिकली जो है नॉन वायलेंस का, अहिंसा का प्रचार किया उन्होंने। देखिए सेकंड पैराग्राफ के अंदर क्या हो रहा है कि बेसिकली क्या बता रहे हैं, बेसिकली अभी हम आगे चलेंगे इसमें। हुआ क्या था, सनातन धर्म हमारा
बहुत पुराना हमें अनंत, जैसे रघुनाथ जो बता रहे थे कलयुग, सॉरी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर ये साइकिल के अंदर चलता रहता है। तो शास्त्रों से निर्धारित हमारी लाइफ होती है और बहुत सब कुछ ठीक ठाक चलता है। बट जैसे जैसे हम आगे युगों में जाते हैं, क्योंकि हमारा जो इज बिकॉज ऑफ द कलयुग, बिकॉज ऑफ द एज एज वेल, क्योंकि कलयुग को हम एज ऑफ क्वारल और एज ऑफ हिपोक्रेसी भी बोलते हैं एक्चुअली। तो इस वजह से हम ना चाहते हुए भी, हम जैसे एनवायरमेंट में रहते हैं, एक दूसरे की निंदा करना, जलन, बेसिकली जो हम शास्त्रों की भाषा में बोलते हैं अनर्था। उस अनर्था को अगर आपको याद करना हो तो वर्ड होता है पगली, PAGLIP। P इज बेसिकली प्राइड, अहंकार, A एंगर, गुस्सा, G ग्रीड, लालच, L इज बेसिकली लस्ट, और I इज इल्यूजन, हमेशा भ्रमित रहते हैं। तो ये हमारे अनर्थ है एक्चुअली। ये इनके वजह से बेसिकली क्या है कि हमारी लाइफ जो है, जैसे जैसे युग बढ़ते रहते हैं, हमारी लाइफ डिग्रेडेड होती चली जाती है। तो एक टाइम ऐसा आया कि लोगों ने जो हमारे शास्त्र हैं, वेदों के शास्त्रों का रेफरेंस देकर के एनिमल किलिंग करनी शुरू कर दी। एनिमल, और इतनी प्रोमिनेंट हो गई वो एनिमल किलिंग, इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई कि मतलब कि और ये क्षत्रिय लोग ही करते थे, एनिमल किल किया और मांस खाया, और एंड देन ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंसिकल थिंग्स। तो ब्राह्मण जो है, जो धर्म है, वो बहुत ही जो धर्म था, धर्म का पतन होने लगा था एक स्टेज के ऊपर। आई नो दे वर नॉट, जैसे अभी रघुनाथ जी ने बताया भी है, एक्चुअली हम वो जो चैंटिंग है, देयर आर मेनी रीजन, बट ही इज एक्चुअली स्पॉट ऑन। It's a yoga dharma only. Simple language. It's a yoga dharma. There is no other way. There is no other way. There is no other way. पर वो तो ब्रह्मा जी ने भी बोल दिया है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि अगर हम सेक्रीफाइस भी करना हो तो हम, अब हमारे आज की डेट में इतने ऐसे क्वालिफाइड ब्राह्मण ही नहीं है। और दूसरी बात, जब आप उन वेदों को, मंत्रों को जब रिसाइट करो तो रेसिटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए। गलत मंत्र का रेसिटेशन आपको वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी दे सकता है। तो वो सब हमारे पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो लोगों ने क्या किया, ये बहुत पहले टाइम, आई थिंक 15 या 16 सेंचुरी तक की बात है ये, लोगों ने शास्त्रों को अपने हिसाब से तोड़ना मोड़ना और अपनी फिलॉसफी बनाना शुरू कर दिया, और एनिमल्स किलिंग उन्होंने शुरू कर दी। अब बेसिकली शास्त्रों के अंदर अगर ये लिखा तो, और जब उनको जो ब्राह्मण जो बोलते थे कि आप एनिमल किलिंग क्यों कर रहे हो, मांसाहार क्यों कर रहे हो, मांस को क्यों खा रहे हो, तो वो खुद ही बोलते थे ये तो आपके शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है ये। और बिल्कुल फैक्ट है ये बिल्कुल फैक्ट है कि आप बेसिकली मांस खा सकते हैं। आप ये शास्त्रों के अंदर बिल्कुल लिखा हुआ है, एक्चुअली ये लिखा हुआ है ये। लेकिन जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि एक मुसलमान को मस्जिद नहीं जाना चाहिए, सिर्फ उसने इतना ही सुना और पूरी ज़िंदगी में वो मस्जिद ही नहीं गया, तो आधा ज्ञान सुना। पूरा ज्ञान ये था कि एक मुसलमान को मस्जिद में नहीं जाना चाहिए बिना नहाए धोए या शुचि, अपने हाथ पांव धोए बगैर। तो आपने देखा भी है, गुरुद्वारे में भी जाते हैं तो एक पानी का कुछ बना होता है, एक पॉट सा बना होता है, उसमें आप जाते हैं, हाथ धोने के लिए बना हुआ है, एंड देन यू एंटर इट। तो आधा अधूरा ज्ञान। तो जिन्होंने भी जैसे भी जो पढ़ा कि ठीक है आप मांस खा सकते हैं, उन्होंने ये पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, क्योंकि कहते हैं ना सुनना तो सुनेंगे तो आप वही जो हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमने पर्सपेक्टिव ही वही बना लिया। अब आपको कोई भी कितना भी समझा ले, अगर मैंने ब्लैक कलर के ग्लासेस पहन रखे हैं, अब मुझे सब कुछ ब्लैक ही नजर आएगा, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव ही अब मेरा ब्लैक लेंसेज वाला है। अगर मैंने रेड कलर के ग्लासेस पहन रखे तो सब कुछ मुझे रेड ही नजर आएगा। तो मैं सुनना वही चाहता हूँ, चाहे मुझे बड़े से बड़ा कोई श्रोता या कोई बड़ा कोई ब्राह्मण भी मुझे समझा दे, जो मैं सुनना चाहता हूँ, ना कि जो मुझे समझाना चाहता है। पीपल लिसन टू टॉक, टू रिस्पॉन्ड एंड नॉट टू अंडरस्टैंड। दैट्स अ प्रॉब्लम एक्चुअली। एनीवेज, तो लोगों ने बेसिकली जो है शास्त्रों के नाम पे किलिंग करना शुरू कर दिया। और शास्त्रों में जब मैंने जब कहा बोला कि जब ये लिखा हुआ है, तो उसमें एक्चुअली प्रॉपर एक संस्कृत का वर्स है, उसमें ये लिखा हुआ है आप मांस को खा सकते हो, लेकिन या कम से कम गाय का मांस तो मत खाओ अगर खाना ही है। तो जैसे क्या होता है, हमें लाइसेंस दिया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस है या किसी चीज़ का हम लाइसेंस ले लेते हैं। व्हाट डज लाइसेंस मीन्स? लाइसेंस मीन्स यू हैव बीन गिवन an opportunity to do something within constraint, within limits.
मीन्स ऐसा नहीं है कि मैंने गाड़ी ले ली और मैं इसको 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर की रेंज पे चला रहा हूँ गाड़ी को, या मैं अपने मन मर्जी से किसी भी लेन में चला रहा हूँ. अगर द मोमेंट इफ दे हैव गिवन यू लाइसेंस मीन्स you are bound by the laws and by the laws who actually has given you the license, and you are bound by the rules and regulations to keep that license in good standing कि मैं इन rules को follow करूँगा, ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट को जंप नहीं करूँगा, ओवर स्पीडिंग नहीं करूँगा. तो सिमिलरली शास्त्रों के अंदर अगर मांस खाना लिखा गया है तो उनको ऐसे बताया गया है कि आप कम से कम अपनी माँ का मांस तो मत खाओ, गाय का मांस तो मत खाओ, आप एक बकरे का मांस खा सकते हो. और वो खाने का भी क्या तरीका बताया है उन्होंने कि जैसे वैष्णव लोग जो हैं एकादशी फॉलो करते हैं, तो 2 एकादशियाँ आती हैं बेसिकली. एक होती है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष आती है शुक्ल पक्ष, राइट. कृष्ण पक्ष इज बेसिकली डार्क, फुल मून होता है ना, वेनिंग मून. अच्छा. और एक देयर इज एनीवेज. सो बेसिकली उस नाइट को क्या बोलते हैं जिसमें चांदी नहीं हो, इसमें मून ही नहीं होता, अमावस. सॉरी, अमावस, थैंक यू. तो बेसिकली शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है कि अमावस की रात के ऊपर, जब बिल्कुल काली रात है, वो रात को अंधेरे में, कुछ उन्होंने दिए हुए हैं, आप बकरे को एक जगह पे पहले आप उसको खिलाओ पिलाओ, उसको पहले सेटिस्फाई करो आप उसको, ठीक है, और फिर आप उसको बेसिकली यू कैन किल देम, एंड देन व्हाइल यू किल दैट एनिमल देयर इज अ मंत्रा, देयर इज अ संस्कृत, प्रॉपर संस्कृत मंत्र है ये. और उस मंत्रा का, संस्कृत का जो मंत्र है उसका हिंदी में जो ट्रांसलेशन है वो ये है कि हे बकरे, तो अपनी टेस्ट टंग को सेटिस्फाई करने के लिए, ये मंत्र है, ये शास्त्रों का मंत्र है. मैं तुझे अभी तो तुझे इस जिंदगी में काट रहा हूं क्योंकि मैं तुझे काट करके अब तेरा. अच्छा, इसमें क्या है कि अगर आपको मांस खाना है, ऐसा नहीं है कि कोल्स में गए आपने 1 किलो चिकन पैक करा लिया या आपने कुछ भी उठा करके ले आए. अगर आपको मांस ही खाना है, अपने टंग को सेटिस्फाई करना है, तो जिस जानवर का आपको मांस खाना है आपको ही उस जानवर को की बलि देनी पड़ेगी, आप ही को देनी पड़ेगी, क्योंकि एटलीस्ट रियलाइजेशन तो आए. तो बेसिकली उस मंत्रा में क्या है कि मैं इस जन्म में तुझे अपनी टंग को सेटिस्फाई करने के लिए तेरी बलि दे रहा हूं. अगले जन्म में अब मैं जानवर बनूंगा और तू इंसान बनना और तू मेरी बलि देना. इससे जो मेरा कर्म है, वो जो मेरा पाप कर्म है, उससे मैं तुझे मारने से मैं मुक्त हो सकूंगा. तो मतलब कि अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी अगर इस प्रोसेस को भी अगर फॉलो करे तो 10 बार तो सोचेगा कि यार ऐसे चक्कर में पड़ना ही क्यों है, मुझे तो मुक्ति चाहिए ना. छोड़ना मुझे क्या अपने टंग को सेटिस्फाई करनी, थोड़ा सा मांस खाने के लिए मैं क्यों किसी का जानवर का पाप अपने सर के ऊपर लूं और पता चले कि अगले जन्म में मैं भी ऐसे ही लटका हुआ हूं वहां पे मैं. तो बेसिकली अब हुआ क्या कि लोगों ने, ये धर्म था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे कलयुग आ रहा है, लाइफ डेग्रेड तो हो ही रही है, पीपल आर मैनिपुलेटिंग द थॉट्स एज वेल. जैसे बाइबल के अंदर 10 कमांडमेंट्स होते हैं क्रिश्चियनिटी के, जो उसमें से सबसे जो पहला जो कमांडमेंट है, उस कमांडमेंट का मतलब जो कमांडमेंट वो है दौ शैल नॉट किल, कि मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, किसी में किलिंग नहीं करूंगा. बट इट्स बैक इन 2004 की बात है, मैं उस टाइम इंग्लैंड में पढ़ता था. एनीवेज, तो ऐसे हम कुछ फ्रेंड्स घूमने के लिए हम स्विट्जरलैंड चले गए और हम घूम रहे थे और हम किसी एक चर्च में चले गए. आई वाज शॉक्ड, लिटरली शॉक्ड. हम गए ऐसे काफ़ी, आई वाज वेरी यंग, आई थिंक मैं 22 या 23 का रहा हूँगा उस टाइम पे. और हम चर्च में चले गए और वहाँ पे चर्च में गए और वहाँ पे एक टेबल लगी हुई थी और उन्होंने बुलाया आओ आओ आओ. तो हम चले गए अंदर, 4-5 फ्रेंड्स थे हम. तो टेबल के ऊपर उन्होंने वो रेड वाइन और सब कुछ लगा रखा था. पहले तो आप वो शॉप की ऐसी चीज़ें मंदिर में, जैसे हमारे मंदिर में तो ऐसा तो हम नहीं करेंगे, बट एनीवेज, तो दे वाज हैविंग अ वाइन एंड देन दे हैड अ मीट समथिंग सम एंड देन दे ऑफर्ड अस, बट आई नेवर हैड इट. तो मैं आई सेड नो. तो मैंने उनसे पूछा लाइक व्हाट्स द कॉज, आई मीन इज दिस अ नॉर्मल रूटीन, एक्चुअली इट हैपेंस हियर इन दिस चर्चेस. उसने बोला नहीं, एक्चुअली मेरे जो हैं फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए हैं, तो हम ये उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं.
वाइन पी करके, मतलब और मीट खा करके। तो आई मीन वैसे आप क्रिश्चियन हैं और आप मांस खा रहे हैं एंड योर ओन कमांडमेंट ऑफ द फर्स्ट कमांडमेंट से दो शैल नॉट किल, आपको किसी को किल नहीं करना है, बट यू आर ईटिंग अ मीट। तो अब क्या कर रहे हैं वो, every now and then they have a different version of a Bible. Why? So that they can, for the sake of being spiritual, they can continue to be called Christian or whatever. Actually, I'm not commenting on that. So that they can be a part of the spirituality of any XYZ sect. But at the same time, वो मेरी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करे। तो अब उन्होंने पहले कमांडमेंट को क्या कर दिया है, दो शैल नॉट किल को करके कर दिया दो शैल नॉट मर्डर। अब मर्डर में तो अब उनको लाइसेंस मिल गया ना कि मैं आदमी को मर्डर का मतलब क्या है कि एक आदमी को अगर मैं मारूंगा तो मर्डर है, उसको किल की डेफिनेशन में नहीं डाल सकते। जानवर को किल की डेफिनेशन में के अंदर आपने सॉरी जानवर को आप मर्डर की डेफिनेशन में नहीं डाल सकते। तो उन्होंने वो वर्ड ही हटा दिया किल, क्योंकि वो किल की डेफिनेशन में आता तो किल का वर्ड को हटा दिया। क्या किया, कॉन्कॉक्शन किया। एग्जैक्टली यही हुआ था कि हमारे शास्त्रों को के साथ खेला खाली की गई। तो उन्होंने क्या किया, शास्त्रों के नाम के ऊपर एनिमल्स किलिंग करना शुरू कर दिया। कोई नेक्स्ट पढ़ेगा पैराग्राफ? आई थिंक इट विल कम इन इट, कोई ये शास्त्रों से आया हुआ। आई रियली वांट टू प्रेजेंट एग्जैक्टली द थिंग्स। डज एनीबॉडी वांट टू रीड इट? यू वांट टू रीड इट? Yeah, I'll read it. Okay. The void philosophy comes from Lord Buddha, who is accepted in the Vedas as an incarnation of Vishnu. But he preaches against the Vedas. He says, I condemn any scripture that condones animal killing. And because the Vedas contain references to animal sacrifices, he rejected the Vedas and went on to present his own philosophy based on the principle of ahimsa, non-violence. He preached that non-violence is the highest religious principle. You continue. Yes, finish it up. In this situation in India, Lord Vishnu appeared as Lord Buddha. He is the Supreme Lord. But he said, I am not God. And he presented a philosophy that was very attractive to the meat-eating atheists of the time. In his philosophy, there is no God, no eternal soul, and the ultimate destination is Nirvana, the void nothingness. But Lord Buddha's main purpose, the main point of his preaching was Ahimsa param dharma. the non-violence is the highest religious principle. So with this preaching, Lord Buddha was able to convince Indians to become vegetarian. And that is really the only purpose of his preaching and his concocted philosophy. Thank you. So basically क्या कह रहे हैं, जब बुद्धा ने जब ये देखा, देखिए अभी आएगा ये, शायद मैंने इस वर्ष को मैंने पहले भी पढ़ा होगा। भगवत गीता का जो 4th चैप्टर है, बहुत सुंदर चैप्टर है। चैप्टर का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। उसके पूरा चैप्टर ही बहुत सुंदर, वैसे तो पूरी भगवत गीता ही बहुत ब्यूटीफुल है, ये चैप्टर तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। ज्ञान आया कैसे, कैसे आ रहा है, कैसे डिसिपेट हुआ। इसमें से जो 6 वर्स है बेसिकली, तो उस वर्स के अंदर भगवान क्या कहते हैं कि मैं कब कब आता हूँ मैं। और अगर हम सब ने अगर बी आर चोपड़ा की अगर हमने महाभारत देखी होगी तो हमको पता है इसका आंसर। भगवान किसी भी इनकारनेशन में, भगवान जब भी आते हैं इन 3 में से एक कारण की वजह से ही आते हैं। वो कौन से कारण है? अभ्युत्थानम परित्राणाय साधूनाम, पहला रीजन। सेकंड रीजन इज विनाशाय च दुष्कृताम, एंड द थर्ड रीजन इज धर्म संस्थापनार्थाय। फिर लास्ट में बोलते हैं संभावामि युगे युगे। सो परित्राणाय मतलब साधु के बाद, परित्राणाय का मतलब था प्रोटेक्शन। मैं साधुओं की, धर्म की प्रोटेक्शन करने के लिए आता हूँ, मैं ब्राह्मणों की प्रोटेक्शन के लिए आता हूँ। जब दूसरा जो है रीजन जो भगवान आते हैं, परित्राणाय साधुना, विनाश मतलब किसको विनाश करने, डिस्ट्रॉय करना आता हूँ। दुष्कृताम, मिसक्रिएंट्स, दुष्टों का नाश करने के लिए आता हूँ मैं। और तीसरा धर्म संस्थापन, धर्म मतलब धर्म बेसिकली, संस्थापना मतलब सिचुएट करना, धर्म की संस्थापना करने के लिए आता हूं मैं। तो जब धर्म की हानि होती है तो इनमें से एक रीजन की वजह से मैं आता हूं। तो अभी क्या हो रहा था, बेसिकली धर्म को मैनिपुलेट किया जा रहा था। धर्म, रिलीजियस प्रैक्टिसेस वाज एक्चुअली एट अ डिक्लाइन। इन फैक्ट आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू एज वेल। देखिए
we do not condemn any other scriptures. In fact, सभी के सभी faiths, जितने भी religions हैं या religious faiths हैं actually, सबका जो essence है वो एक ही है, लेकिन हमको लगते हैं कि उनका essence अलग है. Anyways, we'll not go into detail. Anyways, right? तो basically जब धर्म की जब रिलीजियस प्रैक्टिसेस जब डेग्रेड हो रही थी, तो लॉर्ड ब्रह्मा उस टाइम पे आए. अगर देखिए, अगर कोई इंसान 20 सिगरेट एक दिन में पी रहा है, उसको बोले कि आप सिगरेट पीना छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ेगा उसको. आप उसको बोलो एक काम कर, तू 20 सिगरेट मत पी, कम से कम 3 सिगरेट पी ले, एक सुबह खाने के बाद, दोपहर को 3, एटलीस्ट 20 से 3 के ऊपर तो आए. एटलीस्ट ही विल because it's very hard to stop anything, but then it's actually it's easier to curb down that craving and then gradually finish it off, right? तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप शास्त्रों के अकॉर्डिंग, अगर आपके शास्त्र ये बोल रहे हैं, वेद ये बोल रहे हैं कि आप ये एक एनिमल किलिंग करो, तो मैं एक काम करता हूँ, इस शास्त्रों को ही रिजेक्ट करता हूँ. तो उन्होंने क्या किया, एक नई फिलॉसफी बनाई. जैसे आजकल वो इंडिया में नए बाबाज आ रहे हैं, व्हाटएवर जो भी एक्चुअली अपनी फिलॉसफीज लेकर के आ रहे हैं. देन लॉर्ड बुद्धा ही तो बेसिकली इज ऑथेंटिक, क्योंकि हमने क्लियर हमने पढ़ भी लिया, शास्त्रों में ही आ रहा है, वो लॉर्ड विष्णु के ही अवतार हैं. तो उन्होंने एक फिलॉसफी उन्होंने का प्रचार किया, जिसको बोला शून्यवाद. और जैसे अभी नीचे यहाँ पे लिखा हुआ शून्यवाद में, और उनकी उनकी जो फिलॉसफी थी, उनका जो प्रचारक का जो नाम था वो था अहिंसा परम धर्म. अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, बिकॉज यू आर किलिंग द एनिमल्स फॉर द सेक, बिकॉज यू आर सेइंग इट्स मेंशन्ड प्रीटी मच इन द स्क्रिप्चर्स, सो द स्क्रिप्चर इटसेल्फ हैज टू बी रिजेक्टेड. व्हाई? Ahimsa means non-violence, param, supreme, dharm. The highest religion is non-violence. So if any scriptures condone, like what you said, if there is any scripture that says, क्योंकि आपको समझ में तो आया नहीं, आपने अपनी बुद्धि आपने लगा दी, आपने इतना ही सुना कि शास्त्रों में लिखा है कि मांस खा सकते हो, तो मैं उस शास्त्रों को ही रिजेक्ट करता हूं मैं. तो एंड देन विद दैट लॉर्ड बुद्धा ने ये फिलॉसफी को का प्रचार किया. तो देखिए, ये जैसे मैंने पहले भी मैंने लेक्चर में बोला हुआ है कि शास्त्र हमारी माँ है. अगर किसी बच्चे से पूछना उसकी माँ, उसका बाप कौन है, तो उसकी माँ ही बता सकती है. तो सिमिलरली वेद हमारी माँ है एक्चुअली. तो एनीवेज देखिए, ये सब भगवान की लीला हुई. तो हुआ क्या, शास्त्रों से पॉपुलेशन को दूर कर दिया गया. तो अब एटलीस्ट ये तो हुआ, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ कि स्पेशली उसका जो क्योंकि भारत देश it's like a dharma क्षेत्र actually. We are really fortunate. We have taken a birth, but it's at the same time it's very unfortunate because we are away from the Bharat desh. But then again, there's the moment you land on the earth, हमको लगता है ये क्या धूल मिट्टी सब, but the moment you land actually there is a spiritual potency on that. तो देखिए, थोड़ा सा भी अगर हम यहाँ पे कोई पुण्य कर्म करते हैं या थोड़ा सा भी अगर हम धर्म का प्रचार करते हैं, वो एकदम से फैलता है. तो शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, जब लॉर्ड बुद्धा ने इस फिलॉसफी को का प्रचार किया, तो एकदम से इंडिया के अंदर, और थोड़ा जैसे होता है ना कि जैसे आम के साथ आम भी खराब हो जाता है, या जैसे कोई चीज़ खराब डाल दी, या कोई पके हुए आम से पका दूसरा आम भी पका हुआ, तो जब एक अच्छाई फैलती है, तो आसपास के पड़ोसियों में आसपास उसका असर भी होता है. जैसे बोलते हैं संगत का असर है, गलत संगत का गलत असर है. तो आसपास जैसे चाइना जैसे बॉर्डर, तिब्बत जैसे बॉर्डर हुए, तो वहाँ पे भी इनका इन्फ्लुएंस हुआ. वहाँ पे भी लोग जो है एटलीस्ट उन्होंने रिलीजियस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, और वो वेजिटेरियंस हो गए. एनीवेज राइट, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगे. प्रभु जी, इसमें एक पॉइंट था जस्ट दैट, उसमें आई थिंक बुद्धा's मेन फैक्ट वाज कास्टिज्म का, जो इंडिया में उस वक्त कास्ट वाज डिवाइडिंग पीपल सो मच. हाँ जी. एंड बुद्धा प्रोटेस्टेड ऑन दैट, और उसने वो मास का तो था, बट कास्टिज्म वाज द बिगेस्ट hurdle which was dividing India, and he protested against that, and he said all humans are same. Sure. So that point was Sure. That's why he rejected the Vedas. Sure. The Vedas was interpreted in the wrong way, saying that there are 4 castes, and those castes are like mandatory on each one. Okay. What he Sure. started to say that it's not really Sure. that. Sure. Thank you very much. I'll definitely pick up on this point in the next class. I wasn't sure about this point, but definitely जो महात्मा गांधी है वो भी भगवद गीता को बहुत फॉलो करते थे, और वो भी उन्होंने भी जो है कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करना शुरू किया था.
एक्चुअली, और उन्होंने उनमें से जो जात पात होते हैं, उनमें से जो नीची जो जात होती थी, उन्होंने क्या किया, जिसको हम अनटचेबल्स बोलते हैं, उन्होंने क्या किया, उनको भगवान का नाम दे दिया, हरिजन। हरिजन मतलब लोग, हरि मतलब भगवान, भगवान के लोग, तो उनकी कास्ट को उठा दिया। बट एनीवेज, ये कास्ट किसने बनाई है, और ये कौन सी कास्ट है जो भगवान ने बताई थी? क्योंकि भगवान खुद भगवद गीता के जो है अगेन 4th चैप्टर के अंदर ही बता रहे हैं, चातुर्वर्ण्या मया आपको पूरा वर्ष पता है? चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणः कर्म विभागः। गुणा कर्मा विभागशः, एग्जैक्टली, मुझे पूरा वर्ष भगवान खुद ही बोल रहे हैं। ये जो चार जो वर्ण है, एक्चुअली कास्ट भी वर्ड नहीं है, एक्चुअली इंग्लिश वर्ड तो हम कॉन्कॉक कर रहे हैं एक्चुअली। वर्ण एक्चुअली 8 चीजें होती हैं, एक होता है वर्ण, एक होता है आश्रम, वर्ण और आश्रम, स्पिरिचुअल लाइफ और सोशल लाइफ। तो जो हमारे जो वर्ण है वो हमारी सोशल लाइफ, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, उसको वो बताती है, और वो कौन सी लाइफ है। और भगवान खुद ही बोल रहे हैं ये चातुर्वर्ण मैंने ही बनाए हैं। बट एनीवेज, मैं आपकी जो पॉइंट का मैं आपको जो अगर मैं जवाब दूंगा, डिटेल में नहीं जाएंगे, महात्मा गांधी हो गए या जैसे आपने बताया, आई एम श्योर एक्चुअली। बट अगर हम ये बोलते हैं कि कास्ट, या क्या कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम हमने बनाई है सर। जब हम बोलते हैं कास्ट सिस्टम बनाई है, जब लड़के लड़की की शादी होती है, आपकी कास्ट क्या है? आई एम सॉरी, मैं अगर डॉक्टर हूं तो जरूरी नहीं है मेरा बच्चा भी डॉक्टर होगा, जरूरी नहीं है अमिताभ बच्चन एक्टर है तो उसका बेटा भी उसी लेवल का एक एक्टर हो, वो कुछ भी हो सकता है। द पॉइंट इज, हम इंसान को या बच्चे को जज करते हैं उसके जन्म से। जैसे रघुनाथ जी प्रभु ने बोला है, भगवान बोल रहे हैं चातुर्वर्ण्य व्हाटएवर, द सेकंड लाइन में गुणा कर्मा विभागशः, जो मैं ये जो बना रहा हूं, मैं भगवान ने खुद ने ये 4 वर्ण बनाए हैं। दे आर नॉट बेस्ड ऑन द बर्थ, जन्म के बेसिस के ऊपर नहीं है, वो गुण और कर्म के ऊपर है। गुण का मतलब कि आपकी अपनी इंक्लिनेशन क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या है, और कर्म, गुण मतलब क्वालिटी, और कर्म मतलब आपकी नेचुरल प्रोपेंसिटी। मींस अगर सपोज कीजिए एक डॉक्टर का बेटा अगर म्यूजिशियन बनना चाहता है, तो उसकी इंक्लिनेशन है ना म्यूजिक बनने की, तो हम उसको कैसे बोल सकते हैं कि वो उस धर्म के अंदर आता है? तो the point I'm trying to make it is not based on the dharma, it is based on guna and qualities, basic qualities, guna and karma. We'll go in a point later on. Anyways, तो जब ये फिलॉसफी जब यहाँ पे आ गई, तो अब ये तो हो गया, चलो ठीक है, शास्त्रों को अलग कर दिया गया। बट अब थोड़ा जो सोसाइटी थी, अब वो थोड़ा नॉर्मल हुई। बट द थिंग इज, हाउ लॉन्ग द थिंग्स कैन गो ऑन, बिकॉज द गोल ऑफ अ लाइफ इज ऑब्वियसली देश काल पात्र। जितने भी शास्त्र हैं वो अलग नहीं है, लेकिन वो देश काल पात्र का मतलब है टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। It appears that some of the statements in Quran contradicts our statement, but don't go by the textual meanings. We need to understand the essence of that. There was a time actually in the Middle East area, the population was so degraded that people were actually having a relationship with their own mothers and sisters. उस टाइम पे प्रॉफिट मोहम्मद आए, कहते ये काम तो मत करो, कम से कम एक काम करो, तुम्हें लिबर्टी दे देते हैं। अगर तुम्हें इफ यू कैन नॉट सेटिस्फाई योर लस्ट, तो एक काम करो, तुम 3 निकाह कर लो, लेकिन ये काम तो मत करो। तो द पॉइंट इज, अकॉर्डिंग टू द टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, बट अगेन दैट वाज नॉट अ गोल ऑफ अ लाइफ। द गोल ऑफ अ लाइफ इज डेफिनेटली जन्नत है या हायर सेल्फ है, व्हाटएवर, एक्चुअली all they have a common goal, but we should not go with the basics of the specification of the scriptures. So basically जब वॉइडिज्म फिलोसफी आई, तो उन्होंने ये प्रचार कर दिया अहिंसा परम धर्मा, नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट रिलीजन। बट अगेन दैट इज अ रिलीजन अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन दैट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम, बट दैट कैन नॉट बी सुप्रीम रिलीजन। इसमें मोक्ष कहाँ चला गया इसके अंदर? और दूसरी बात, इसके अंदर अभी जैसे हमने पढ़ा, इन्होंने एक चीज को रिजेक्ट कर दिया, आत्मा ही नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने शास्त्र को भी रिजेक्ट कर दिया। तो जब शास्त्र को ही रिजेक्ट कर दिया, तो सोसाइटी आगे बढ़ेगी कैसे? बट एनीवेज, एटलीस्ट थोड़ी शांति तो आई। उसके बाद क्या हुआ, फिर आए शंकराचार्य।
आदि शंकराचार्य। तो पहले हमने फिलॉसफी पर हमने सुनी, हमने शून्यवाद विच इज अ वॉइडिज्म। फिर शंकराचार्य आए। शंकराचार्य इज नन अदर देन लॉर्ड शिवा ओनली। वुड यू लाइक टू रीड और एनीबॉडी वुड लाइक टू रीड? Yeah, please, anyone. The teachings of Shankaracharya are often referred to as covered Buddhism, because basically he has presented many of the Buddhist ideas but supported them by a misinterpretation of the Vedanta Sutra. So he has simultaneously re-established the authority of the Vedas and also presented a misinterpretation of the Vedas. Lord Shankaracharya, who is an incarnation of Lord Shiva, appeared and easily defeated the Buddhist philosophy and re-established the authority of the Vedas. Thank you. Can you just read this one as well, very quickly? Yeah. Shankaracharya is an incarnation of Lord Shiva, and he was also unable to give the people the ultimate truth because they were still atheists, following the Buddhist philosophy and still unwilling to surrender to the Supreme Lord. So Shankaracharya presented a misrepresentation of the Vedas, particularly the Vedanta Sutra, in which he attempts to eliminate any personal aspects of the Supreme Lord by word jugglery and false logic. Although the Vedanta Sutra clearly describes the Supreme Lord as personal in the ultimate issue, his commentary, the Saririka Bhasya. Saririka Bhasya, exclusively stresses the impersonal, all-pervasive energy of the Supreme Lord as the ultimate and completely denies any personal aspect at all. Thank you very much. Mother, can you just finish this one as well? Very important, last one. It is stated in the Padma Purana that Lord Shiva appeared as a Brahman in the age of Kali to preach the Mayavad philosophy. Mayavada philosophy, which is nothing but a type of Buddhist philosophy. Mayavadam. It's okay. You can leave the verse here. Lord Shiva, speaking to Parvati Devi, foretold that he would spread the Mayavad philosophy in the guise of a sannyasi, Brahman, just to eradicate Buddhist philosophy. This sannyasi was Shripad Shankaracharya. In order to overcome the effects of Buddhist philosophy and spread Vedanta philosophy, Shripad Shankaracharya had to make some compromise with the Buddhist philosophy, and as such he preached the philosophy of monism, for it was required at that time. Otherwise there was no need for his preaching Mayavad philosophy. Thank you very much, ma'am. श्रीमद् भागवतम, ये जो आपने जो पूरा पढ़ा, ये श्रीमद् भागवतम या भागवत पुराण के 4th कैंटो के 24th वर्स के 24th चैप्टर के 17th वर्स में आता है ये। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, अब शास्त्रों से तो अलग कर दिया, अब शास्त्रों को दोबारा भी तो लेकर के आना है, धर्म संस्थापना, धर्म की संस्थापना भी तो करनी है। तो कृष्ण भगवान ने यथा वैष्णव नाम यथा शंभु, द हाईएस्ट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, हाईएस्ट जो वैष्णवाज हैं, जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको वैष्णव बोलते हैं, जो हाईएस्ट वैष्णवा हैं वो शंभु हैं, लॉर्ड शिवा हैं। तो लॉर्ड शिवा को इंस्ट्रक्शन दी कि अब यहाँ पे ये जो अपने वर्ड स्पेशली एक्चुअली श्रीमद् भागवतम के अंदर ये जो कॉन्टेक्स्ट आया है, ये पद्म पुराण, वेयर इज दैट वन? I think I covered this thing. Where was that? उसी में सब लोग हाँ, exactly. It is stated in the पद्म पुराण. Exactly, हाँ. ये जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है ये श्रीमद् भागवतम में मेंशन है, और भागवत पुराण जो है पद्म पुराण को रेफरेंस कर रही है। तो अलग अलग पद्म पुराण है। तो पद्म पुराण वो पुराण है जो शिवजी ने पार्वती जी को दिया है, पार्वती जी को सुनाया है पुराण। तो उसमें शिव खुद बोल रहे हैं कि मुझको मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन मुझको ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं मेरे आराध्य भगवान ने मुझको कि तू जा एज अ डिस्गाइज बन करके एक ब्राह्मण के रूप में आप धरती के ऊपर जाओगे और आपका नाम रहेगा श्रीपाद शंकराचार्य। और आप बेसिकली क्या करोगे, आप एक देखिए, एक तत्व को दूसरे तत्व से, एक फिलॉसफी को दूसरे फिलॉसफी से काटा जाता है। तो अभी वहां पे जो है अर्थ के ऊपर शून्यवाद फिलॉसफी चल रही है। इस फिलॉसफी का खंडन करो और एक नई फिलॉसफी को आप पैदा करो। तो उन्होंने एक फिलॉसफी को पैदा की जिसको बोला गया अद्वैत। अब उन्होंने बोला भाई ठीक है, आप ये तो बोल रहे हो कि आप एनिमल किलिंग नहीं करो और आपने शास्त्रों को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन शास्त्र
को आप कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी को आप गलत कर। इन्होंने इस बात का खंडन कैसे किया, उन्होंने ऐसे खंडन ऐसे किया क्योंकि बुद्धिस्ट फिलॉसफी ये बोलती थी कि पॉट की एयर और पॉट के भाग शरीर के अंदर आत्मा ही नहीं है। उन्होंने पहले उनके 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट ये था कि शरीर के अंदर आत्मा ही नहीं है। दूसरी, अगर आत्मा, अच्छा आत्मा नहीं है, और दूसरी बात, जो कुछ भी है आपकी एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस के बाहर से शरीर छोड़ते ही बाहर मर्ज हो जाती है। तो अगर आपको याद होगा लास्ट जो है चैप्टर के अंदर हमने कुछ वर्सेस पढ़े थे संस्कृत के, उसमें हमने पढ़ा था कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। आत्मा को तो ना तोड़ा जा सकता है, ना मोड़ा जा सकता, सॉरी, ना काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना गीला कर सकते हैं। 1 से 2 नहीं कर सकते, 2 से 1 नहीं कर सकते। तो अगर 1 से 2 नहीं कर सकते, 2 से 1 नहीं कर सकते, तो ये फिलॉसफी कैसे हुई है? तो इसका मतलब इस शरीर के अंदर कुछ और भी है। तो श्रीपाद शंकराचार्य ने अद्वैत फिलॉसफी का जब प्रचार किया, तो शून्यवाद फिलॉसफी का खंडन करके उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया कि शरीर के अंदर एक आत्मा भी है और इसका जो गोल होता है वो परमात्मा में। अब देखिए, कोई किसी को, अगर आप एक ऐसी फिलॉसफी पे, अगर ऐसे कल्चर के अंदर हो जहां पे भगवान, धर्म, ये सब चीजें है ही नहीं, जहां शास्त्रों को माना ही नहीं जाता है, ऐसी जगह पे शास्त्रों को एस्टैब्लिश करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लीव अलोन ये बताना कि शास्त्रों का गोल भगवान के पास जाना है। और भगवान कोई एक निर्गुण, कोई रोशनी नहीं है, वो एक हमारे आपके जैसे एक व्यक्ति है। ये तो बहुत बहुत दूर की बात है उनको समझाना। पहले शास्त्रों को तो वापस लेकर के आओ समाज के अंदर। तो श्रीपाद शंकराचार्य आए और उन्होंने एक फिलॉसफी, उन्होंने जो प्रोपोगेट करी वो थी अद्वैत। बेसिकली इस अद्वैत फिलॉसफी से उसका खंडन किया गया। और जो शंकराचार्य, नाउ एक्चुअली ये साउथ इंडिया से ये प्रोपोगेट हुई है, और देयर आर मेनी मठास एज वेल। हालांकि इनका जो फिलॉसफी जो आप जो जाते हैं, उनका जो लाइफ का गोल होता है वो ब्रह्मन के अंदर, ब्रह्म ज्योति के अंदर लीन होता है। दैट्स फाइन। हम एक्चुअली गलत नहीं बोल सकते, पहली बात, क्योंकि वो खुद ही एक भक्त, भगवान के भक्त है। और क्या बोल रहे हैं, आई कम एज अ डिस्गाइज। मैं एक डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, मतलब एक बहरूपिया, मैं एक बहरूपिया का रूप लेकर के आऊंगा मैं, और लोगों को मिसगाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए, वैसे तो शास्त्र में वर्ड यूज कर रहे हैं मिसगाइड, बट अगेन डोंट टेक द स्क्रिप्चर्स टेक्सचुअली बट कॉन्टेक्चुअली। आप मिसगाइड तो ऑलरेडी हो। शास्त्रों को तो आपको पहले ही आप जब शास्त्र से दूर हो चुके हो तो आप पहले ही मिसगाइडेड हो। आपको मिसगाइड से गाइड करना है वापस शास्त्रों के पास आने के लिए। और जब शास्त्रों के पास वापस आओगे, जब पढ़ोगे, तब जाकर के इंसानियत की आगे उन्नति होगी। तो एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो शंकराचार्य ने उस फिलॉसफी का खंडन किया। अब एटलीस्ट ये तो आ गया कि शून्य नहीं है हम एक आत्मा है। तो यहां से शून्यवाद से अद्वैत फिलॉसफी का प्रचार हुआ। मेरे मन में एक सवाल है। हाँ, जैसे आपने अभी बताया ना मांस के बारे में कि मांस खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं। हाँ, और कम से कम आप गाय ना खाओ, बकरा खा लो, और उसका आपने बस वो दिया। तो इससे समझ ये आता है कि आप बड़ा पाप मत करो, छोटा पाप कर लो, ठीक है। और शायद मैं ना समझूँ, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ, शास्त्रों में ये बताया गया कि आप जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, हाँ जी, जो आप मुझे बता रहे हैं, जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, जब वो श्लोक का बोलोगे, तो आपको एक रियलाइजेशन होगी। और उसके बाद जो बुद्धा जी आए, बुद्धा जी ने ये बोला कि अहिंसा मत करो। इसलिए क्योंकि ये शास्त्र ऐसा बोल रहे हैं, और शास्त्र जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं लोगों में, तो मैं शास्त्रों को ही रिजेक्ट करना चाहता हूँ। और शास्त्रों के, मेरा जो गोल है लाइफ का, मुझे अहिंसा नहीं करनी है। और उसके बाद शंकराचार्य जी आए, उन्होंने वापस से इस्टेब्लिश किया। अब ये सब कुछ इस्टेब्लिश होने के बावजूद भी, अभी मैंने कुछ रिसेंटली 2-3 महीने पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी, इसमें बताया गया कि जो गोवा के अंदर जो ब्राह्मण हैं वो मछली का सेवन करते हैं। अब ये उनका भी यही एक्सक्यूज़ है कि वो शास्त्रों को या उनके धर्म में लिखा हुआ है कि ये मछली का सेवन जो है वो जायज़ है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि इतना कुछ होने के बावजूद क्यों हम इतने कंफ्यूज हैं, और ये मछली खाना क्या सच में ठीक है, जो हमारे गॉड ब्राह्मण जो गोवा में खाते हैं? बंगाली भी खाता है, बंगाली, वो तो खाते हैं, जैसे बलि भी चढ़ती है, बहुत सारी जगह है कि बलि भी चढ़ती है ना, बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो वो तो अपनी अपनी धारणाएं बना रखी हैं। लेकिन ये मछली का जो सेवन गॉड ब्राह्मणों में चल रहा है गोवा के अंदर, वो बहुत सालों से बहुत ट्रेडिशनली चलता आ रहा है।
तो वो मैं समझना चाहता हूँ कि क्या है इसकी। एक तरफ तो मेरे हिसाब से तो हर चीज में जान है, हर चीज में आत्मा है। वो जो बुद्धा जी कहते हैं कि हाँ अहिंसा मत करो, तो मत करो, क्यों किसी को मारना है। ठीक और है। साइंटिफिकली ये एक दांतों के ऊपर एक रिसर्च हुई थी और उसमें ये बताया गया कि आदमी के इंसान जो है, मनुष्य के इंसान है, वो मांस खाने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। ये टॉपिक खत्म करना है। आई कम बैक टू द पॉइंट एंड देन विल टेक मोर क्वेश्चंस एज वेल। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, जब ये फिलॉसफी, जब हमने ये जब अद्वैत फिलॉसफी आ गई एक्चुअली, और अद्वैत फिलॉसफी, और जैसे मैंने प्रेडिक्शन के अंदर हमने एक नाम ये भी बताया था, अशोका। तो उस टाइम पे जो वॉइड फिलॉसफी थी बुद्धिस्ट की, तो उस टाइम अशोका का राज था। तो ही वाज द वन जिसने बुद्धिस्ट फिलॉसफी का प्रचार किया था, तो जिसका खंडन ये शंकराचार्य जी ने किया था। एनीवेज विल नॉट गो इन डिटेल, एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन है यहाँ पे, ये दोनों ही फिलॉसफियाँ सेम कैसे हैं। जब अद्वैत आ गया, फिर उसके बाद आए मध्वाचार्य, जो ये बेसिकली चार जो है बोनाफाइड परंपराज हैं। ब्रह्मा मध्वा गौड़िया परंपरा, जिसमें हम वैष्णवाज आते हैं। ऐसे ही एक श्री संप्रदाय है, ऐसी एक जो संप्रदाय है, ऐसे एक रुद्र संप्रदाय है, जिनको ये बोनाफाइड संप्रदाय हैं, जिनको भगवान ने ज्ञान दिया। एनीवेज, तो उन्हीं संप्रदाय के अंदर एक आचार्य, एक गुरु आए, बेसिकली इज नन अदर देन वरुण देवी हैं। इन्होंने जब ये आए, इन्होंने प्रचार किया जो है इस उनकी जो फिलॉसफी का जो नाम रखा गया, पहले क्या था, शून्य से अद्वैत पे आए। इन्होंने बोला नहीं, अद्वैत नहीं है कुछ भी, ये द्वैत है। भाई आप ये तो आप समझ गए हो कि आत्मा हो, लेकिन आत्मा अगर आपका, जैसे हमने एक्चुअली ये टॉपिक हमें दोबारा कवर करना नहीं चाहिए, बट हम जस्ट गोइंग टू वेरी हाई लेवल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम इस पॉइंट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपकी लाइफ का गोल ये है कि मुझे ब्रह्मन में जाकर के लीन होना है, शरीर छोड़ा, कुछ लोग बोलते हैं ये आत्मा एक ज्योति है और ये ऊपर जाकर के सचखंड में या ब्रह्म के अंदर, ब्रह्म ज्योति के अंदर जाके लीन हो जाएगी। मेरा पहला सवाल ये है, अगर हम इस वर्ष से जो भी हमने पढ़ा है, अगर आत्मा को मैं काट नहीं सकता, 1 से 2 नहीं कर सकता, 2 से 1 नहीं कर सकता, तो अगर जब ये जो छोटी ज्योति अगर ये ब्रह्म ज्योति के अंदर भी चली जाती है, तो ये मर्ज तो हो ही नहीं रही है। ये क्योंकि इस आत्मा का स्वभाव ही मर्ज होना नहीं है, 1 से 2 होना नहीं है, 2 से 1 करना नहीं है, तो फिर ये वहां पे कर क्या रही है? आई थिंक ये सवाल मुझे नहीं, आप जो आपको, so have you studied, do you know like what happens when the soul goes back to the सचखंड? उस वाली बुक के अंदर है जो राधा, आपने पढ़ा है उस बुक को? हाँ, वो पढ़ा है। तो जब आत्मा चली जाती है तो वहां पे क्या करती हैं? It's just merged with the divine ocean. अच्छा, वो मर्ज हो जाती हैं। Correct. अच्छा, हाँ। ठीक है। Then nothing- फिर उसके बाद आइडेंटिटी खत्म है आपकी, मतलब फिर आप, अच्छा No. So अच्छा। when we die, actually, the gods come हम्म, to take everyone. हाँ हाँ But those who realize while living, हाँ हाँ they understand that. But those who not हम उस बुक के अंदर हैं, वो while कुछ आत्मा है, लेकिन Correct. जो गुरु होते हैं वो लेके जाते हैं। correct. तो अल्टीमेटली अब उस बुक में ये लिखा है कि आत्मा जब वो ब्रह्मन में चली गई वहां पे मर्ज हो जाती हैं। Correct. ठीक है, वी रिस्पेक्ट दैट फिलॉसफी एज वेल, बट अगेन अगर हम भगवत गीता के हिसाब से बोलें तो कि ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे एक आग चल रही है, बोनफायर चल रहा है, मैंने माचिस की तिल्ली लगाई, अब तिल्ली के अंदर भी एक आग है और उसको मैंने एक बोनफायर के अंदर डाल दिया। अब जो वो तिल्ली आग में चली गई, तो अब वो तिल्ली उस बोनफायर में जाके जल गई। अब उस जो एक सिंगल मैच स्टिक है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। बट यहाँ पे हम मैचेस की तिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे आत्मा की बात कर रहे हैं। वो इन 5 तत्वों के जो अभी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो सब कुछ ये जो आग, ये सब कुछ जो है पंच महाभूत से बना, ईदर एयर फायर वाटर अर्थ। पूरी क्रिएशन, हमारी बॉडी इन 5 महाभूतों से बनी हुई है, लेकिन आत्मा इस 5 महाभूत से है ही नहीं। पानी में जो डूब नहीं सकता, पानी में से जो गीला नहीं हो सकता, पानी से जो सूख नहीं सकता, आग से जो गीला नहीं हो सकता, 1 से 2 नहीं हो सकता, तो वहां पर जाकर वो कर क्या रही है एक्चुअली वहां पे? आपको जो हमारे शास्त्रों की जो ओपिनियन है वो मैं आपको बताता हूँ, वी रिस्पेक्ट इट एक्चुअली। देखिए, ब्रह्मन में जाने का मतलब पता क्या होता है? ब्रह्मन एक, जैसे शांति और देयर इज अ डिफरेंस इन शांति, देयर इज अ डिफरेंस इन खुशी। मैंने पूरे हफ्ते बॉस ने बहुत काम करवाया, मुझे बहुत काम कराया, मीटिंग, बैक टू बैक मीटिंग, ये सब वो। अब मुझे वीकेंड के ऊपर जाना है, या एक काम करता हूँ, बच्चों को लेकर के तुम ब्रेक पे चले जाओ और हम चलते हैं कहीं वहाँ पे, या जैसे ब्राइट चलते हैं, कहीं चलते हैं, तुम लोग घूमना, मैं आराम से बैठ करके वहाँ पे सोऊंगा, रिलैक्स करूँगा, या कहीं बैठेंगे,
जैसे अब आपने बोला अभी आप ट्रैकिंग करके आए हो, आपने बड़ा ब्यूटीफुल व्यूज देखा, बड़ा रिलैक्स, मन बहुत रिलैक्स रहा। बेसिकली क्या हुआ, अब आपको वो जो वर्क का जो स्ट्रेस था, जो बेसिकली जो मिजरीज थी आपकी, थी फोन कॉल्स या काम का प्रेशर या जो भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अब आपके पास वो नहीं थी। तो इसका मतलब क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्सेंस ऑफ समथिंग इज नॉट डज नॉट मीन प्रेजेंस ऑफ समथिंग। किसी चीज का ना होना किसी और चीज की प्रेजेंस का हिंदी में क्या बोलेंगे कि बराबर नहीं है। मीन्स अगर मेरी लाइफ में दुख नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अब मुझे शांति मिल रही है। तो ब्रह्म ज्योति में जाने का मतलब क्या होता है, वो बेसिकली वो एक ऐसी जगह पे है जहां पे, या सिंपल एग्जांपल है, मैं बोलता हूं आज मैं वीकेंड पे 10-11 घंटे सोऊंगा और मैं बहुत फ्रेश हूं। मैं जब मैं सो रहा हूं उस टाइम पे मेरे पास कोई मिजरीज नहीं है, मेरे पास कोई मिजरीज नहीं है और मैं बहुत शांत हूं और मैं अच्छा फील कर रहा हूं मैं। लेकिन मैं कब तक सोऊंगा, मैं सोऊंगा तो मैं कब तक सोऊंगा? अगर मैं शांति में भी रहूंगा, अगर मैं बस वहां पे ओम शांति शांति, ठीक है शांति तो है, लेकिन मैं कब तक शांति में रहूंगा? क्योंकि आत्मा का बाय डिफॉल्ट जो नेचर है वो एक्टिव है। आत्मा कुछ करना चाहती है, मुझे कुछ करने को दो, मुझे करने को कुछ दो। तो आई एम सॉरी टू से, ये पॉइंट आगे आएगा एक्चुअली। तो वो एक ऐसी स्टेज है, इसीलिए हालांकि वो मुक्ति है, वो कौन सी मुक्ति है वो भी बताता हूं आपको मैं, वो भी। तो वो एक ऐसी स्टेज है, वो वहां पहुंचने के बावजूद भी वहां पे शांति है। बट आई एम सॉरी टू से, शास्त्रों के वर्ड बता रहा हूं मैं, जो लोग ये बोलते हैं ना ब्रह्म ज्योति में जाकर के वो इतनी हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर चले गए कि वो इस पंच महाभूत से बाहर निकल गए, ब्रह्मा के प्लेनेट से भी ऊपर निकल। जो भी उस बुक में लिखा हुआ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट है, वो वहां तक पहुंच गए। लेकिन वो शास्त्रों में वर्ड को जो यूज किया गया है उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। स्पिरिचुअलिटी के पहली सीढ़ी के पर पहुंचने के बावजूद भी आपने वहां पे सुसाइड कर लिया। क्यों? आपने वहां पे आपने एनीवेज राइट। तो दीज सोल्स अब वहां पे कुछ करने को तो है नहीं, दे इवेंचुअली फॉल डाउन, दे कम बैक अगेन एज वेल, दे इवेंचुअली कम। बट जब ये दोबारा आती हैं आत्माएं, ये हमारी आपकी जैसे आत्मा नहीं है, ये बहुत ही पवित्र आत्माएं होती हैं, क्योंकि उनको रियलाइज हो चुका है। अब ये उनको अब दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको कि अब मैं कुछ, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ, अगर मैं ब्राइट में चला भी गया वीकेंड पे, ठीक है मैंने 10 घंटा सोया, दिन में कुछ खाया पिया खूब खाया, रात में फिर सो गया, अगले दिन में सोया, अब मुझे कुछ करना है, मुझको आई वांट, मेरा रेस्ट हो चुका है, मुझे शांति मिल चुकी है, बट आई वांट ब्लिस, आई वांट हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस इज डिफरेंट फ्रॉम शांति, इज डिफरेंट फ्रॉम पीस। तो एनीवेज राइट, विदाउट गोइंग इन डिटेल, तो मध्वाचार्य ने एक्चुअली जो फिलॉसफी बताई वही सेम स्टोरी है कि भैया आप ये बोल रहे हो आत्मा ऊपर जाकर के मर्ज हो जाती है, लेकिन भगवत गीता के अंदर उन्होंने पूरा जो स्ट्रेस दिया वो शास्त्रों के ऊपर दिया। भैया शास्त्रों को आप मोड़ तोड़ रहे हो, भगवत गीता में तो यहाँ पे लिखा हुआ है नैनम जो है आत्मा को तो हम मोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, तो आप ये कैसे बोल रहे हो कि ये अद्वैत है? इट इज अद्वैत, इट इज अद्वैत। तो एनीवेज राइट, तो देन ही एस्टैब्लिश्ड दिस द्वैत फिलॉसफी। और इसके बाद एक फिलॉसफी और आई, अभी मैं एक्चुअली ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाया, उस फिलॉसफी को बोलते हैं द्वैत, विशिष्ट द्वैत, जो रामानुजाचार्य जी ने करी। एनीवेज अब वोंट गो इन अ डिटेल। विशिष्ट अद्वैत एक्चुअली, विशिष्ट, सर किसने बोला? आपको पता है विशिष्ट अद्वैत क्या होता है? राजू जी ने बोला। आपको पता है? Vishishta Advaita philosophy. हाँ आपको पता है? So it was propounded by रामानुजाचार्य। हाँ, So as per the philosophy, it is qualified Advaitism. क्वालिफाइड अद्वैतिज्म, Yeah, which ठीक है। means that qualitatively we are one with the Lord. Qualitatively we are one with the Lord. Okay. There is no difference. हाँ, It's just the difference in the magnitude. Vishishta Advaita philosophy is very close to Achintya Bhedabhed philosophy. yes, I'm coming to the next point. Yeah, okay, yeah, thank you. तो थैंक्स रघुनाथ जी बाबू। तो फाइनली जो फिलॉसफी आई फिर चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु इज नदर, उनका इनकारनेशन भी शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है, ये भगवान कृष्ण ही हैं, ये जो लास्ट अवतार में आए हैं। इन्होंने जो फिलॉसफी का जो प्रचार किया वो था अचिंत्य भेद भेद, जैसे मैंने शुरू में बताया, इनकंसीवेबली साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, मीन्स
एक भी मतलब सेम भी है और डिफरेंट भी है। और यहीं से हमारा जो लास्ट क्लास, एक्चुअली पहले मुझे ये लेना चाहिए था, वो दूसरी क्लास बाद में करनी चाहिए थी, बट एनीवेज, और यहां से फिर ये वर्स हमारा स्टार्ट हो गया, वदंती तत्त्वविदस् तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो बेसिकली द पॉइंट इज, द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए ब्रह्म जो ब्रह्मन में जाना चाहते हैं, या ब्रह्मन जो उनका लाइफ का गोल ब्रह्मन है, गलत नहीं है, शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ ये परमात्मा जो अब जो ध्यान लगा करके, जो हमने बहुत कॉम्प्लेक्स हमने डिस्कस किया था, वो जो है अपने जो है षट चक्र को से आपको आपकी आत्मा बाहर आती है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, वो तो हम कर ही नहीं सकते, भूल जाए हम उसको, बट एनीवेज वो भी एक बोनाफाइड प्रोसेस है। देखिए अचिंत्य भेदा भेद अगर लाइन में अगर समझाया जाए, देखिए अगर हम ये बोलते हैं सूर्य की किरण, सूर्य का जो आकार है ग्लोब, और सूर्य ग्रह, ये तीनों साथ में ही एग्जिस्ट करते हैं, मींस हम इसको भी वर्शिप कर, तो वो भी भगवान का ही रूप है। ब्रह्म ज्योति वो भगवान की ही कांति है, भगवान की ही कांति है। तो हम उसकी भी पूजा करते हैं, हम परमात्मा की भी पूजा करते हैं, और हम भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि वो खुद ही बोल रहे हैं ये अद्वयम है, ये दो नहीं है, ये दो नहीं है, ये एक ही है। ये I know it's very complex philosophies, but anyways, we don't have to go in a detail. But the point is better to appreciate and respect all three rather than मायावादीज, जो शून्यवादीज या अद्वैतवादीज थे, वो ये कहते हैं कि सिर्फ ब्रह्मन ही है। जैसे मैंने आपने श्योर, अगर आप लोगों ने वो मैंने ग्रुप में एक छोटा सा एक वीडियो डाला था मैंने उसका, आपका निराकार के ऊपर। तो अगर आप ये बोलते हैं कि भगवान निराकार है, जैसे कोई बोलते हैं अरे क्या भगवान राम, क्या भगवान कृष्ण, सब कुछ निराकार से आए थे, वो निराकार, और उनके अंदर जो निराकार था उसी ने भगवत गीता बोली, भगवान ने नहीं बोली। और जब उन्होंने बोल दी तो वो जाकर के उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और वो निराकार में चले गए। तो अगर आप सिर्फ ब्रह्मन को ही अगर आप स्ट्रेस देते हो, और आपकी फिलॉसफी ये है कि आप परमात्मा और भगवान के आकार के रूप को रिजेक्ट करते हैं, देन इट्स एन ऑफेंस, इट इज एन ऑफेंस, इट इज कॉल्ड बेसिकली मायावाद। हाउएवर, जैसे राधा स्वामी जी का जो सेक्ट है, दे आर नॉट मायावादीज, एक्चुअली दे आर ब्रह्मवादीज। ब्रह्मवादीज बेसिकली वो होते हैं, वो फिलॉसफीज होती हैं विच रिस्पेक्ट ऑल द थ्री तत्वास। दे नो कि भगवान का आकार भी है, बट उनका जो गोल है वो निराकार तक है। जैसे देखिए, अगर मैं आपको, आई एम नॉट हियर टू जज एनीवन, ये मैं एग्जाम्पल कई बार दे चुका हूँ कि मैं पोर्ट मेलबर्न में रहता हूँ, और मुझे अगर यहाँ पे लिंडहर्स्ट में आना है, तो मेरे पास नियरेस्ट जो ट्रेन स्टेशन रहेगा वो सदर्न क्रॉस स्टेशन रहेगा। मेरी सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक राइट ट्रेन में बैठने का। अब ठीक है, मैं एक राइट ट्रेन में भी बैठ गया, मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन से प्लेटफॉर्म से कौन सी ट्रेन जा रही है। वंस आई एम ऑन टू दैट ट्रेन, देन आई नो कि ये ट्रेन मुझको लिनब्रुक जो है वो लेकर के आ जाएगी। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो लिनब्रुक ना जाकर के उसका लास्ट स्टेशन, आई एम नॉट श्योर ये यहाँ पे कौन सी लाइन आती है, सपोज कि डैंडोरॉन्ग है, वो डैंडोरॉन्ग के ऊपर टर्मिनेट हो गई। तो ट्रेन तो मैं सही रास्ते पे, मैंने प्लेटफॉर्म से, मैंने सही प्लेटफॉर्म से मैंने टेक ऑफ किया, स्पिरिचुअलिटी के सही मैंने टेक ओवर किया, बट मैं उस ट्रेन तक ही पहुंचा जहां पे उसका टर्मिनल ही वहां तक था, वो मुझे आगे नहीं लेकर गई। बट इट इज नॉट रॉन्ग, I can board and then reboard another train as well to continue to reach my destination as well. So basically they are called ब्रह्मवादीज। और अचिंत्य भेदा भेद जो है, जो हम वैष्णववाद, जो हम फिलॉसफी जो हम फॉलो करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये तीनों ही एक ही हैं और हम तीनों की ही हम पूजा करते हैं। बट खाली भगवान को सिर्फ निराकार ही मान लेना ये गलत है, क्योंकि भगवान हमारे आपके जैसे एक आकार है, उनका आकार है। भगवत अभी 4था चैप्टर तो बहुत ही सुंदर है, विल हैव अ क्लास एक्चुअली जस्ट ऑन द 4th चैप्टर। उसमें बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। सो अर्जुन, भगवान खुद बोल रहे हैं जन्म कर्म, मेरे जो जन्म है और मेरे कर्म है दोनों ही दिव्य हैं। मैं तुम्हारे जैसे के लिए, पहली बात तो मेरा शरीर तुम्हारे जैसा मल मूत्र मांस इन हड्डियों से नहीं बना हुआ मेरा, और मैं जैसे जिस तरह तुम कोख में आते हो, कोख से जन्म लेते हो, मेरा जन्म वैसा नहीं होता। मेरा जन्म दिव्य है। दूसरी बात, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। भगवान अगर छींकेंगे भी ना, उसके पीछे भी बल्कि 10 कॉज होंगे उसके। जब भगवान कुरुक्षेत्र की वॉर के ऊपर खड़े हुए थे,
श्रीमद् भागवतम पुराण के 7वें चैप्टर की, इतना ब्यूटीफुल चैप्टर है जो है अपना भीष्म पितामह शैया के ऊपर लेटे हुए हैं। भीष्म पितामह इज वन ऑफ द 12 महाजन, 12 महाजन हैं वो प्रेयर कर रहे हैं। उसकी प्रेयर में एक वर्स आता है कि भगवान सिर्फ जहां पे खड़े थे, सिर्फ नजर मात्र से ही मतलब क्या, मतलब कि हम लोगों के, हमारे क्या भाग्य होंगे, मैं बताऊं अभी आप नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्या भाग्य होंगे उन लोगों के जिन्होंने भगवान के अगेंस्ट युद्ध किया, लेकिन सिर्फ भगवान को देखने मात्र से ही भगवान ने सबकी मुक्ति कर दी। ऐसा लगा कि सबकी मृत्यु हो गई, अरे ये क्या कर दिया भगवान ने, उकसाया अर्जुना को, इतना बड़ा युद्ध कर दिया। सिर्फ भगवान को देखने मात्र से सबको मुक्त कर दिया। क्या क्वालिफिकेशन थी उनकी? कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। इस तत्व को हम कैसे समझेंगे? एनीवेज राइट, द सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट मेरा हमारा लास्ट में छूट गया था। अब जो हम बोलते हैं ना मुक्ति मुक्ति मुक्ति, एक्चुअली शास्त्रों के अंदर ये मुक्तियां 5 तरह की बताई गई हैं। जल्दी से इसको हम कवर कर लेते हैं। पहली बात तो मुक्ति की डेफिनेशन मैंने बताई थी, जैसे मुक्ति हित्वा ने था रूपम स्वरूपेण अव्यवस्थिति, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में सिचुएट को होना को हम मुक्ति बोलते हैं। और वो कौन सी पोजीशन है? जीवेरा स्वरूपा हुए कृष्णेर नित्यादास, भगवान के इटर्नल सर्वेंट बनना ही ये हमारा स्वरूप है। पर एनीवेज बहुत हाई फिलॉसफी, पहले हम इनको समझ लेते हैं। जो मुक्तियां होती हैं, ये 5 तरह की मुक्तियां होती हैं। पहली मुक्ति होती है सालोक्य। सा मतलब वो, मतलब यहाँ पे वो मतलब भगवान की बात कर रहे हैं, लोक मतलब प्लैनेट। ये वो मुक्ति होती है जब आपको मिलती है तो आप उसी ग्रह के ऊपर जाते हो, उसी प्लैनेट के ऊपर जाते हो मुक्ति होने के बाद, जिस प्लैनेट के ऊपर वो भगवान रहते हैं। अब भगवान को तो अपना प्लैनेट है, लेकिन अगर आप किसी देवी देवता, जैसे अगर आप किसी की पूजा कर रहे हो, जैसे भगवान को, जैसे अभी 10 अवतार है, नरसिंह देव की पूजा कर रहे हो, तो नरसिंह देव का अपना एक प्लैनेट है। ऐसे ब्रह्म ज्योति के अंदर अनंत अनंत जो है वैकुंठ है, और हर एक वैकुंठ के अंदर एक एक विष्णु और विष्णु के अवतार बैठे हुए हैं। तो सालोक्य मुक्ति वो मुक्ति होती है जो आप उसी प्लेनेट पे चले जाते हो जिस प्लेनेट के ऊपर आप भगवान रहते हैं। सामीप्य वर्ड बना समीप, मतलब नियर, वहां पे ये वो मुक्ति होती है जहां पे आपको भगवान के पास रहने की, भगवान के पास बड़ी क्लोज सेवा करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। रेजिडेंट्स तो हम भी हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का जो पीए रहेगा, ही विल हैव अ हायर opportunity, higher privilege to be very close to prime minister or to any minister. When people like us, we cannot have those privileges. So that is that kind of a mukti. सारूप्या, means वह, रूप means form. ये वो मुक्ति है जिसमें जैसा भगवान का रूप है वैसा ही रूप आपको मिलता है। आपको सारष्टि, 2 वर्ड्स बना, सार और इष्टि। इष्टि मतलब आपकी ओपुलेंस, आपके पास वही ओपुलेंस, आपको वही ओपुलेंस मिलती है जो भगवान की ओपुलेंस होती है। श्रीमद् भागवतम के अंदर बहुत आया हुआ है कि जो वैकुंठ वासी हैं, वैकुंठ वासी जब चतुष कुमार वैकुंठ में गए, गोप कुमार जब वैकुंठ में गए, तो सामने से कोई आ रहे थे और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तो उनको लगा सामने से ये तो विष्णु आ गए। कहते नहीं, हम विष्णु नहीं है, हम विष्णु दूत, हम तो यहाँ रहते हैं। कहते हैं लेकिन आप तो बिल्कुल विष्णु जैसा लगते हैं। क्या? क्योंकि उस ग्रह के ऊपर जिस ग्रह के ऊपर वो गए, वहां पे सबका फॉर्म, सबका रूप, सबकी ओपुलेंस ही विष्णु जैसी थी। ऑब्वियसली देयर इज वन डिफरेंस एज वेल, जो कौस्तुभ मुनि, एक मणि रहता है भगवान विष्णु की, उनकी चेस्ट के ऊपर रहता है, जो और किसी रेजिडेंट्स के पास नहीं होता है। देखिए ये जो चारों मुक्तियां हैं ना, ये चारों मुक्तियां में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि चारों के अंदर एक दासत्व का मीन्स सर्विस एटीट्यूड है। लेकिन जो निर्गुण में या को मानते हैं, जो ब्रह्मन में जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं, जो हम बोलते हैं मुक्ति, 99.99% लोग इस मुक्ति की बात करते हैं। सायुज्या, इसका मतलब जा मतलब जन्म, या मतलब अंदर, सा मतलब उस जैसा, मीन्स मुझे उसके जैसे बोलते हैं ना, कोक के अंदर चला जाना। ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं मुझे भगवान के, और ये सायुज्य भी 2 तरह की होती हैं। मीन्स इसका मतलब होता है भगवान के अंदर चले जाना, और भगवान के अंदर जाने का मतलब है यहाँ पे ये भी 2 तरह की मुक्तियां हैं। एक तो होता है भगवान की कांति, भगवान की रोशनी के अंदर चले जाना, चलो वो एक तरह की मुक्ति है। और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है भगवान के शरीर के अंदर ही लीन हो जाना। जैसे एक एग्जाम्पल आता है, कृष्ण भगवान के एक मामा के बेटे थे, जो बहुत ज्यादा गालियां निकालते थे भगवान को, और उन्होंने 100 वरदान दिए थे उनकी मदर को कि मैं जब तक मैं तेरे 100 पाप को माफ करूंगा, उसके बाद मैं तुझे
मैं तुझे मार दूंगा मैं। एनीवेज राइट, तो एक है जी चलेगा है शिशुपाल, शिशुपाल एग्जैक्टली शिशुपाल। तो शिशुपाल को पूरी सभा में भगवान ने अपने चक्र से उसका गला काटा और सबने देखा कि उसकी आत्मा निकली और भगवान के अंदर लीन हो गई। तो सायुज्य मतलब होता है अंदर मर्ज हो जाना। अब ये मर्ज भी जो होता है या तो शरीर के अंदर मर्ज हो जाना होता है या कांति के अंदर मर्ज हो जाना होता है। कांति में मर्ज होना तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जो शरीर के अंदर मर्ज हो जाते हैं वो तो बहुत ही बड़ा पाप है। ये भगवान के चरण कमलों के लिए ऑफेंस है ये। क्यों? क्योंकि इसमें जो दासत्व का जो भाव होता है वो खत्म हो जाता है। जब आप दो से, पहली बात आप दो से एक हो ही नहीं सकते, लेकिन अगर आपकी मेंटालिटी ये है कि मुझे दो से एक होना है, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि मैं भी भगवान, बेसिकली उनका मेंटालिटी ये होती है कि जब मैं आत्मा परमात्मा में मिल गई, अब मैं भी परमात्मा बन गया, अब मैं भी भगवान बन गया। तो इसमें क्या हुआ, जो दासत्व का जो भाव है वो भाव खत्म हो जाता है। तो दिस हैविंग दिस फिलॉसफी इटसेल्फ इज ऑफेंस। तो भक्त कभी भी सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते। एक्चुअली वो तो पांचों में से ये फिलॉसफी नहीं चाहते। बस लास्ट, उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे। बहुत ही सुंदर वर्स है। कोई वर्स कैन यू रीड, गिवन गिवन अपॉर्चुनिटी? My devotees who are always satisfied to be engaged in my loving service Bit louder. are not interested in even the four principles of liberation. Salokya, Sarupya, Samipya and Shashti. Although these are automatically achieved by their service, what then is to be said of such perishable happiness as elevation to the higher planetary systems? If one develops his natural devotional service to the Supreme Personality of Godhead, Mukti stands before him with folded hands to offer all kinds of service. In other words, the devotee is already liberated. There is no need for him to aspire for different types of liberation. The pure devotee automatically achieves liberation even without desiring it. थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी, ये 2.4 नहीं है, ये फोर्थ चैप्टर का फोर्थ कैंटो का सेकंड चैप्टर का 69 वर्स है। सॉरी, गलती मैंने टाइप में कर दिया। इट्स 4.2.69। इतना सुंदर वर्स है यहाँ पे। बेसिकली ये विष्णु जी बोल रहे हैं दुर्वासा मुनि को। ये एक बड़ी स्टोरी है, विल नॉट गो इन अ डिटेल। वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो मेरे भक्त हैं वो तो मेरी भक्ति में हमेशा ही एंगेज रहते हैं, और उनको इन चार, भगवान खुद बोल रहे हैं, भगवान यहाँ पे सायुज्य का नाम नहीं लिया, यहाँ पे सायुज्य भगवान खुद बोल रहे हैं, यहाँ पे भगवान विष्णु खुद बोल रहे हैं। कहते हैं मेरे भक्तों मेरी सर्विस, मेरी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा, और उनको इन चारों मुक्तियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ऑल्दो, जबकि ये चारों की चारों मुक्तियां के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या कहना उन लोगों के लिए जो ये चाहते हैं। एक तो पता ही नहीं है, हम सारे अंग्रेज बने पड़े हैं, अंग्रेजों का इंग्लिश है, कोई पूरा हो जाता हमारी लाइफ में, हम वो एक ओबिचुरी कार्ड छपवाते हैं, उस पर लिखते हैं स्वर्गवासी हो गए, ही हैज गॉन टू द हेवनली अबोर्ड। आई मीन, डू वी हैव एनी लाइक सेंस ऑफ मेंटालिटी? आई मीन, इंटेलिजेंस है हमारे अंदर? हम बोल रहे हैं हमारे जो भी पूरे हो गए वो स्वर्ग में चले गए। डू वी नो व्हाट इज दैट प्लेस स्वर्ग? क्या वो एक इटर्नल जगह है स्वर्ग? शीने पुण्य मृत्युलोक विशंति, भगवान खुद बोल रहे हैं। वो एक तरह का क्रेडिट कार्ड है। $1,00,000 का मैंने आपको क्रेडिट कार्ड दिया, अब जाओ जाकर के लास वेगस में एंजॉय करके आओ। होटल में चेक इन किया, खूब एंजॉय कर रहे हो, 4 दिन के बाद डोर के ऊपर नॉक हो गया, सर आपका क्रेडिट कार्ड का कैश खत्म हो गया। वो क्या होता है? सर क्रेडिट कार्ड आपकी कंपनी ने दिया था, जब तक क्रेडिट था तब तक आपने यहाँ पे एंजॉय किया, सब कुछ किया। अब मैं क्या करूं? सर आपको होटल खाली करना पड़ेगा। मैं तो नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम यूज्ड टू ऑफ दिस लेविश लाइफस्टाइल। तो आपको फेंक दिया जाता है। तो भगवान शिव विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग। भगवद गीता के 11वें चैप्टर, आई थिंक 7वें चैप्टर में बोल रहे हैं, शीने पुण्य मृत्युलोक विशंति। शीन मतलब जीनो, पुण्य। जब आपके जो पुण्य का खाता खत्म हो जाए, तो बेसिकली स्वर्ग लोक में जाने के लिए आपको पहले बात तो आपने बोल दिया स्वर्ग लोक में चले गए, यू नीड टू हैव अ पायस क्रेडिट, पुण्य का खाता होना बहुत जरूरी है। जब आप वहां पे पहुंच भी गए हो, जैसे ही आपके पुण्य का खाता 0 होता है, फिर से आपको पुण्य लोक विशंति, फिर से दोबारा फेंक दिया जाता है इस भूलोक के ऊपर। तो भगवान कह रहे हैं कि
ये मुक्ति तो जो 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 मेरी भक्ति कर रहे हैं, मुक्तियां हाथ जोड़ के खड़ी हुई हैं, तो उनका तो खैर कहना ही क्या, जो कहते हैं मेरे मेरे जो मैं स्वर्गवासी हो गई, या मैं जो मेरी लाइफ का गोल ही स्वर्ग में जाना है, क्यों? क्योंकि मुझे वहां पे भोगना है, वहां पे उस खुशी का तो आप कहना ही क्या। अब आगे देखिए, बहुत सुंदर वर्ष है, लास्ट पॉइंट एंड देन आई विल फिनिश दिस क्लास। आप लोगों ने ध्रुव महाराज का नाम सुना है? ध्रुव प्लैनेट का, ध्रुव ग्रह का नाम सुना होगा आपने। एनीवेज राइट, ध्रुव महाराज जब 5 साल के थे, उन्होंने भगवान की भक्ति की और भगवान से आशीर्वाद लिया एक्चुअली, और 50,000 साल एक्चुअली कोई सत्यु की 35,000 ईयर्स उन्होंने अर्थ के ऊपर रूल किया, क्योंकि त्रेता युग में जो एज होती थी वो 1 लाख साल होती थी, जो घट करके 10,000 हुई, फिर 1,000 साल हुई द्वापर में, और अभी यहाँ पे 100 साल का अगर कोई जीजा, वैसे तो 100 साल बोलते हैं, 60 साल कोई जीजा, वही बहुत बड़ी बात है। 35,000 साल के बाद जब उनका शरीर त्यागने का समय आया, बहुत सुनने की बात है, श्रीमद् भागवतम के 4th कैंटो के अंदर आता है। तो भक्त हैं भगवान के, और भगवान ने अपना ग्रह दिया उनको। एक्चुअली जो ध्रुव महाराज हैं, उनके पिता का नाम है उत्तानपाद, वो प्रजापिता हैं। प्रजापिता मीन्स द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोजिनेशन, पॉपुलेशन को बढ़ाओ प्लैनेट्स के अंदर। और जो उत्तानपाद हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी से बड़ी तो कोई प्लैनेट, ब्रह्मा जी से बड़ा तो कोई ओपुलेंस कोई है ही नहीं। स्टोरी में नहीं जाएंगे। भगवान विष्णु से उन्होंने जब 5 साल के लड़के थे ना, उन्होंने तपस्या ये करनी चाहिए कि मुझे तो अपने दादा से भी बड़ा प्लैनेट चाहिए मुझे। जब वो खुश हो गए, भगवान विष्णु आए तो बोलते, भगवान इस ग्रह में तो ब्रह्मा से तो ऊपर कोई प्लैनेट है नहीं, तो एक काम करता हूँ, तुझे मैं अपना ही ग्रह दे देता हूँ तुझे मैं। तो भगवान जहाँ पे रहते हैं, उस प्लैनेट, विष्णु जो जहाँ पे रहते हैं, उस प्लैनेट का नाम बेसिकली जो है ध्रुव लोक बोला जाता है। और ये एक ऐसा प्लैनेट है, जब प्रलय होती है सारे प्लैनेट खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये प्लैनेट खत्म नहीं होता। एनीवेज डिटेल में नहीं जाएंगे। तो 35,000 साल के बाद भगवान के भक्त हैं, जब उन्होंने शरीर त्यागना चाहा, तो भगवान ने वैकुंठ लोक से एक वैकुंठ का विमान भेजा, और साथ में वैकुंठ वासी आए, जो उनके उनके श्लोक में उनका नाम भी है, जो भगवान के जो पर्सनल एसोसिएट है, नंदा सुनंदा उस वैकुंठ विमान पे आए। ध्रुव महाराज आप चलिए। अब वहां पे जब उस समय ध्रुव महाराज ऋषियों के साथ बैठे हुए थे, तो ये ध्रुव महाराज हैं और सामने विमान बैठा हुआ है। तो अब जब उनके जाने का टाइम हुआ, उन्होंने सबको प्रणाम किया और वो जाने लगे। जब जाने लगे तो सामने आकर के जैसे उनको चढ़ना था, विमान पे चढ़ना था, तो आकर के स्वयं जो मृत्यु है, यमराज जी जो हैं, वो आकर के ऐसे बैठ जाते हैं, और जो मुक्तियां हैं वो ऐसे हाथ जोड़ के बैठी हुई हैं। और ध्रुव महाराज वो यही बता रहे हैं, इफ वन डेवलप्स हिज नेचुरल डिवोशन, अगर आप भक्ति अगर नेचुरली अगर प्रोड्यूस कर लेते हो, तो मुक्ति तो आपके हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है। तो ध्रुव महाराज यमराज जी के सर के ऊपर पैर रख करके वैकुंठ विमान पे चढ़ते हैं, और मुक्तियां हाथ जोड़ के खड़ी हैं कि हमें भी सेवा का मौका दो। लेकिन भक्तों को मुक्ति से मतलब नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का जो गोल है वो है ब्रह्मवादी या मायावादी ब्रह्मवाद का जो अल्टीमेट गोल है वो ब्राह्मण तक है। लेकिन जो भक्त का जो गोल है वो वहां से ब्राह्मण से स्टार्ट होता है वहां पे, क्योंकि मुक्ति अल्टीमेटली आपको कहां तक लेके जा सकती है, ब्राह्मण या वैकुंठ प्लैनेट तक। लेकिन यहाँ पे तो स्वयं जो अपने ध्रुव महाराज हैं, यमराज जी के सर के ऊपर सर रख करके वैकुंठ विमान में बैठे, और वैकुंठ विमान में बैठ करके वैकुंठ लोक के अंदर चले गए वहां पे। तो लुक एट द ब्यूटी ऑफ द भक्ति से, भगवान की भक्ति करने से, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, विल फिनिश दिस क्लास, अगर आम चाहिए तो मैं आम वाले के पास जाऊंगा ना, सेब वाले के पास तो नहीं जाऊंगा मैं। तो सिमिलरली अगर आपको मुक्ति भी चाहिए तो मुक्ति पदे, भगवान का नाम है मुकुंद, मुक्ति पदे मतलब जिनके पैरों के चरण कमलों में मुक्ति आश्रय लेती है, वो उन भगवान का नाम बेसिकली भगवान कृष्ण है की बात कर रहे हैं। एक भगवान का नाम है मुकुंदा, मुकुंद और दा, जो मुक्ति दे सकते हैं वही मुक्ति, जो आम दे सकता है वही आम देगा ना, प्याज तो नहीं देगा। तो जो मुक्ति दे सकता है वो, आप उसी के पास तो मुक्ति मांगोगे।
तो भगवान का एक नाम मुकुंदा और मुक्ति पदे भी है। तो अगर आपका गोल मुक्ति भी है तो अल्टीमेटली आपको भगवान के रास्ते ही जाना पड़ेगा। बट अगेन भक्त के लिए तो मुक्ति बहुत ही छोटी चीज़ है, मुक्ति तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इस वॉज अ वेरी फिलोसफिकल क्लास। अगर नहीं भी समझ में आया, जैसे मैंने बताया, यस्य वही शूड़े मानायाम, हमारी आत्मा तो सुन ही रही है, सुनने मात्र से हम लोगों की बहुत सारी प्योरिफिकेशन हुई होंगी। वी कैन कॉल द चिल्ड्रन। सर आपके सवाल का जवाब था, कैन यू जस्ट रिएक्ट्रेट, आपने क्या बोला था आपने एक सवाल में? मैंने मास्क को लेके क्वेश्चन पूछा था। मास में सर गलत है एक्चुअली, क्योंकि जो धर्म है ना, जो धर्म है, जो गायें हैं वो हमारी माँ है, वो भी हमारी माँ है एक्चुअली शास्त्रों में 7 माएँ बताई गई हैं। और जो बुल है, वो बुल जो है वो धर्म है, और जो धर्म है वो 4 टांगों के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। और इन बुल की अगर मैं अगर एक टांग काट दूं मैं, तो क्या वो ठीक से चल पाएगा? अगर कोई किसी भी जानवर की एक टांग काट दूं तो क्या वो चल पाएगा ठीक से? नहीं चल पाएगा ना। तो मांस खाना, शराब पीना या किसी चीज़ का नशा करना, स्मोकिंग करना, किसी चीज़ का करना, किसी स्त्री, अवैध स्त्री या पुरुष के साथ रिश्ता रखना और जुआ खेलना, ये चीज़ें धर्म की 4 टांगों को काटती हैं। अब ये कोई भी फिलॉसफी बोल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी कॉन्कॉक्टेड फिलॉसफी है। जब धर्म शास्त्र ही ये बोल रहा है कि अगर आप किसी का मांस खाओगे, चाहे मछली का मांस खाओ या किसी का मांस खाओ, आप धर्म को ही खत्म कर रहे हो। एंड सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि आप उसको मांस को खा सकते हो मंत्र पढ़ करके, व्हाट वुड बी दैट कॉन्सेप्ट? देखिए, चलिए मैं अपने आप को उस जगह पे रखता हूँ, मेरे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है, मुझे मांस खाना है, मुझे मीट खाना है। जब सर कोल से, वूलवर्थ से एक बना हुआ एक चिकन लेग, व्हाटएवर जो भी मांस है, वो लाना आसान है आपके सामने। आप खुद को तो छोड़ो, क्या आप खुद जानवर को मार सकते हो? द होल प्रोसेस फॉर द स्क्रिप्चर्स टू मेंशन दिस इज टू प्योरीफाई। व्हाई? दैट इज अ ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म। अनलाइक जो दूसरे धर्म है, आपको यही करना है, यही कलमे पढ़ने हैं, आपको इसी की आराधना करनी है, यही करना है। लेकिन ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म इज नॉट वन कट फिट फॉर ऑल। 5 मीटर का कपड़ा है, इसमें जिसका कुर्ता बनेगा, चाहे वो 36 की कमर है, चाहे 30 की कमर है, यही पहनना पड़ेगा। यही हमारी सनातन धर्म की ब्यूटी है, क्योंकि हम सब की जो मांगे हैं, हमारी सबकी जो अट्रैक्शन है, वो डिफरेंट है। ठीक है, मैं उस लेवल के ऊपर नहीं हूं। अगर आप उस लेवल के ऊपर, ऐसा नहीं बोलता जैसे अगर आप इस लेवल पे नहीं हो तो आप भक्ति कर ही नहीं सकते। आप जो है मस्जिद में आ ही नहीं सकते, या आप गुरुद्वारे में जा ही नहीं सकते। पहले आपको ये प्यूरिफिकेशन करनी पड़ेगी। नहीं, अगर आप इस लेवल पे नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, आप ये कर लो, आप ब्राह्मण के ऊपर आओ। आप पहले इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आओ कि हम ब्रह्मस्मि, इसका भी एक पॉइंट है। हम ब्रह्मस्मि मतलब मैं मर्ज हो गया, सो हम, या जो भी मंत्र बोलते हैं। हम ब्रह्मस्मि का मतलब है कि आई एम ब्रह्म, मतलब स्पिरिचुअल, आई एम स्पिरिचुअल। ब्रह्मा मतलब ब्रह्म ज्योति नहीं है यहाँ पे। अब ब्रह्म, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे वो कार्य करने हैं जिससे मेरी आत्मा प्लीज होती है। तो आई थिंक आई एम ट्राइंग टू गिव एन आंसर। शास्त्रों में ये लिखा गया हुआ है, लेकिन दिस इज ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि हर लोगों उस सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं हो सकते। आई एम श्योर एक क्लास में एक टीचर होता है, लेकिन सर फर्स्ट तो एक ही बच्चा आता है, और उसमें बच्चे फेल भी होते हैं। टीचर की क्वालिटी के अंदर कमी नहीं है, जो वो बुक, जो शास्त्र पढ़ा रही है, उसके अंदर कमी नहीं है। कमी किसके, अभी कमी तो नहीं बोलूंगा, वेरिएशन या वेरीगेटेडनेस किसके अंदर है? उस क्लास के बच्चों के अंदर। यही हमारे साथ है। हम पॉपुलेशन के अंदर, हम लोगों की एक डिफरेंट मेंटालिटी है। हम सब कृष्ण को नहीं मान सकते या राम को नहीं मान, किसी को राम का में टेस्ट आता है, किसी को कृष्ण में टेस्ट आता है। तो अल्टीमेटली गोल तो हमारा यही है, लेकिन एटलीस्ट यार ये नहीं ये अगर आपका मीट खाने की भी, देखिए बिफोर आई एंटर दिस थिंग, यस देवर, हालांकि मैंने पूरी लाइफ में मैंने कभी कभी मैंने वेज नहीं खाया। इनफैक्ट मैं लंदन में भी मैं कई साल पढ़ा, नौकरी भी करी, मैंने कुछ भी नहीं, अंडा भी नहीं खाता था मैं। बट देयर वाज अ फेस ऑफ अ टाइम जब मैं थोड़ा जॉब में आया दुबई में, तो थोड़ा सा मैंने फिश खाई। आई डिडंट लाइक इट, बट देन आई मूव्ड आउट ऑफ द फेस। एक्चुअली मैं उस फेस से बाहर आया। बट द पॉइंट इज, एटलीस्ट ये तो समझ में आता है, चलो खा तो रहे हैं, लेकिन खाते तो थे टंग की सेटिस्फेक्शन के लिए, बट अंदर से एक फीलिंग आती थी यार काम गलत कर रहे हैं। तो एटलीस्ट ये तो एक हमारे अंदर एक दिस इज लाइक अ स्टेपिंग फाउंडेशन स्टोन, कि एटलीस्ट अगर आपको ये रियलाइजेशन भी आती है तो यू विल ग्रेजुअली स्टॉप ईटिंग मीट। आई थिंक आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। और किसी का कोई सवाल है आज की क्लास से, या किसी कोई क्लास हो?
नेक्स्ट क्लास से फिर देन विल कम बैक टू द पॉइंट जो हम तीसरी क्लास जो है हु एम आई, मैं हूँ कौन, मेरा नाम मधुकर है, आपका नाम अंकुर है, हम ये डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. बाय बाय. नाइट. अर्जुन कृष्ण संवाद की जय. श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय. निता गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. थैंक यू.